पानी तो हमने अच्छा बनाना सीख लिया, लेकिन ये पानी के कुछ दो तीन हम चीजें, इसको कैसे सहेजना है ना। इस पानी को गर्म करो तो क्या होता है, इस पानी को अलग अलग बर्तनों में रखो तो क्या होता है। तो ऐसे अलग अलग चीजें आज हम देखेंगे, जानेंगे कि ये पानी सबसे अच्छा किस बर्तन में रहता है और इसके पीछे क्या वजह है। अगर पानी अच्छा है, और ये जो आयनाइजेशन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, ये वो किस तरीके से शरीर से फ्री रेडिकल्स, जिसको हम कहते हैं कि जो हर बीमारी का कारण होते हैं फ्री रेडिकल, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे लेते रहते हैं, तो हर सेल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इस कश्मकश में शरीर को होता है भारी नुकसान। तो ये जो भारी नुकसान होता है, इसको हाइड्रोजन गैस कैसे सही करती है, इस पे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि क्या हमने अच्छा पानी बना लिया, अब हम इसको गर्म करके पी सकते हैं क्या, ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे अलग अलग बर्तनों में, कांच के बर्तन में, प्लास्टिक में, तांबे में, अगर इस अच्छे पानी को रखा जाए तो ये पानी कैसा प्रभाव देता है, ये इसका प्रभाव कम होता है कि बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को लेके भी हमें एक पुराना वीडियो हमको मिला है, तो आज हम उस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम जो है इसको रखें, क्या करें। तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन क्या करता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक हमारे पास एक फॉरेन का वीडियो है अंग्रेजी में, लेकिन वो बहुत अच्छा है वो समझने के लिए कि हाइड्रोजन इंप्रूव कैसे करता है सेहत को। This is a Blend Extra, where our next guest has had so much success transforming people's lives, they had to get a second office. Dr. Raphael Foss is the owner of 855 Burn Fat, and he's here to tell us all about the success of the Nutrimost program. Welcome back, Doctor. Thank you so much for having me. Great to see you. We're going to talk about that beautiful new office in just a second. But first, there's something else that's very exciting that you want to chat about. Absolutely. You know how people are always getting super healthy and everyone's wondering, well, what's going on? Well, I brought one of our premier supplements that we do give, and I want to explain to you exactly what it is. So this right here is molecular hydrogen. And so look, we're going to go ahead and give an example. So if you don't mind, Okay. open up a bottle of water. And you're just going to drop a tablet in there, right? That's it. I'm going to drop Okay. one of these tablets in there, and we're going to let that fizzle up. And what's happening here is this is compressing to 2.2 parts per million Yeah, molecular. you can see it bottom down down below here. that it's like fizzing up. Exactly. Molecular See that? hydrogen. And what's molecular hydrogen? So I'm going to show you And everybody this here. is something that what people this will is. do along with the food that real food that they have Absolutely. during the diet. Absolutely. So hydrogen, as everybody knows, it's in the periodic elemental table, right? It's the smallest, most common element in the universe. It can go through anything. It can go through glass. It can go through plastic. It has no problem getting into your cells and getting into the nucleus and the mitochondria of the cell. The mitochondria is where your energy is formed and all those things, right? So molecular hydrogen, if you Google any disease process, right, and you put in something called oxidative stress, what you'll find is something called the OH free radical. So I'll draw that Right. on here. Okay. Right. And a lot of people have heard the term free radical in general, Yeah, but this is so- an OH specific free radical. Exactly. It's actually the most destructive free radical in the human body. So Okay. I just drew that out here. And this is responsible for inflammation, disease, and cancer. Okay. Okay. So there's a reason that the molecular hydrogen that I was telling you about that all our clients take every single day, there's over 800 studies that show over 180 different diseases that show a positive therapeutic response to just this. And that includes diabetes, high blood pressure, cholesterol, cancer, acid reflux, Crohn's disease. I mean, Alzheimer's, Parkinson's, the list goes on and Yeah. on. So how does that actually happen, right? How does that work? So let me show you. So this is the molecular hydrogen. This goes into your cells, right? Okay. And H attaches here, right? Because hydrogen can get through anything. And H attaches here. OH plus H equals what? H2O. H2O. So you've now taken one of the most Wow. dangerous free radicals found in the human body, and you've turned it into the best thing in the human body, which is water. So we're hydrating the cells. And that's exactly what this is. And how does that, so it's 855 Burn Fat and Nutrimost. How does that then help people lose weight? Oh, because this is the future of healthcare. What this does is this heals the receptors, the leptin receptors, the insulin receptors, because that's what causes all these cravings. And when your body's functioning optimally, when your energy's functioning optimally, when your mitochondria and your cell and all the
your organs are starting to function optimally, your body burns fat, and it helps you lose weight. And I want you guys to try these. Okay. I think these are ready It's to go. ready to go. This And- one you put in before. Yeah, and Okay. it uses a magnesium to bind. So if it tastes a little bit metallic, it's because you're mineral deficient. But pretty much in just magnesium. like water. It should, Mine tastes just like if water. it tastes just like water, that's great. Mine tastes a little bit like minerals, so maybe I'm a little bit more mineral deficient than Tiff. Yeah, and so one a day will change your life. And this is one of the main supplements that we do offer in our office. Can And you put this in any water, or does it have to be a bottled water? Like you, a tap you wanna water, or you no? want to make sure the bottle's filled completely to the top so Yep. that when it compresses, that water is then full of this H2, which your body needs. So people can get this if they visit Nutrimost. There's also a free विदेशों में इस प्रकार से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का बॉटल भी आता है। मतलब ये जो बॉटल है, ये जो मैंने अमेजोन पे तो सर्च किया, तो ये बॉटल था 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए की 60 कैप्सूल्स, 60 गोलियां। इतना महंगा है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और जैसे आपका कोको कोला आता है आपका केन के अंदर, वैसे भी हाइड्रोजन रिच वाटर जापान में मिलता है और बड़े बड़े विकसित देशों में मिलता है। ये लोग इसलिए पीते हैं इस प्रकार के टैबलेट जो है, जैसे उन्होंने बताया कि सारे कोशिकाओं के दरवाजों को हाइड्रोजन रिपेयर करने की ताकत रखता है। अगर आप मोटे हैं तो आपके लेप्टिन रिसेप्टर, मतलब लेप्टिन हार्मोन का संतुलन है, तो उस असंतुलन को दूर करेगा। मोटा आदमी पतला हो जाएगा। पतला कोई आदमी है, खा पी रहा है, उसको जो है उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन उसका वजन भी बढ़ा देगा। वजन घटा भी सकता है हाइड्रोजन, वजन बढ़ा भी सकता है। और जितने भी आपके कोशिकाओं के दरवाजे हैं, द डोर्स ऑफ योर सेल्स, है ना, हर सेल का एक दरवाजा होता है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का दिमाग, मेम्ब्रेन मतलब परत, और ब्रेन मतलब दिमाग। तो सेल का दिमाग होता है, हर एक सेल का दिमाग होता है, और उसको सुधारने की ताकत हाइड्रोजन में होती है। और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है जब हम आयोनाइजेशन करते हैं, और ये एनर्जी जो मशीन है उसका काफी अच्छा प्रोड्यूस होता है। जो है 800-900 पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन तक ये चला जाता है। 700 पीपीएम, 800 पीपीएम तक ये चला जाता है। और इसको भी मेजर करने का एक लिक्विड आता है जिसको H2 ब्लू लिक्विड कहते हैं, जो अमेरिका से आता है। और H2 ब्लू लिक्विड बहुत महंगा आता है। मतलब जब मैंने उसको अमेरिका से मंगवाया था, तो वो एक बॉटल ही कुछ 3,000 रुपए की आई थी। और उसमें कुछ मेरे ख्याल से 10 ml आता है, मतलब 100 ड्रॉप, 100 बूंद आता है। 5,000, 3,000 रुपए का, इतना महंगा आता है। तो ये H2 ब्लू ड्रॉप से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है क्या। अगर होगा तो ये ड्रॉप नीला वाला डालने के बाद भी पानी नीला होता है, फिर सफेद हो जाता है, फिर नीला होता है, फिर सफेद हो जाता है। तो उससे पता पड़ता है कि आपकी पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अभी एक बार हम फिर अमेरिका से मंगाने वाले हैं वो। तो ये जो है कोई इसका यूज नहीं करता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, तो इसका लोग इसको नहीं मंगाते। लेकिन हमने भारत में इसको मंगवाया था जब हमने नया नया इस काम को चालू किया था 2017-18 में। और ये गिनती की 5-6 बॉटल हमने मंगाई थी, वही हम टीम में थी और वही पूरे भारत में घूमी। हमारी टीम के अलावा ये बॉटल्स किसी के पास नहीं थी। और आज भी ये H2 ब्लू ड्रॉप्स कोई यूज नहीं करता है क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। अमेरिका से आने में ही इसको 1 महीना लग जाता है। और हमें अगर नॉलेज नहीं है, हमने डाल दिया बहुत सारा, तो खत्म हो जाता है जल्दी से। एक बूंद जो है 100 रुपए का पड़ता है, इसलिए ये नहीं मंगाते लोग। लेकिन ये बहुत काम का है, बहुत अद्भुत डेमो इससे होता है। तो कहने का मतलब है कि अब हाइड्रोजन तो हमने बना लिया, हाइड्रोजन ने जैसे आपने देखा फ्री रेडिकल को पानी में कन्वर्ट करके निकाल दिया। दोस्तों दुनिया का कोई भी एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को पानी में कन्वर्ट करने की ताकत ही नहीं रखता। ये ताकत केवल हाइड्रोजन में है कि वो फ्री रेडिकल को पानी में कन्वर्ट करके बाथरूम से निकाल देता है। इसीलिए जब आप कैंगन वाटर ताजा पीते हैं तो आपको 2 बार 3 बार यूरिन आता है। एक गिलास पानी पीने पे इंसान को 2 बार 3 बार यूरिन कैसे आ सकता है? क्योंकि ये वही हाइड्रोजन है जो इन फ्री रेडिकल को इनके साथ रिएक्शन करता है और उसको बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल देता है। इसी कारण से इसकी बड़ी उपयोगिता है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये अगर बॉडी में चला जाएगा ताजा पानी, तो ये ताजा पानी जो है कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जिसको डायबिटीज हो जाता है, इंसुलिन खोल ही नहीं पाता, कोशिकाओं के दरवाजे सारे खराब हो जाते हैं। तो ये जो दरवाजे हैं, इसको जो है सुधारने का काम हाइड्रोजन करता है। लोग कहते हैं ना डायबिटीज में कैसे काम करता है, वो जो दरवाजा जो ब्लॉक हो गया है सेल का, जिसके कारण ग्लूकोज उस सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, उस मांसपेशी के अंदर नहीं जा पा रहा है, उस मांसपेशी के दरवाजे को खोलने का, रिपेयर करने का काम हाइड्रोजन करता है। खोलने का काम पानी का अल्कलाइन नेचर करता है, उस दरवाजे को सुधारने का काम ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करता है। और इसीलिए धीरे धीरे हम देखते हैं लोगों का डायबिटीज ठीक हो जाता है, बशर्ते वो दूध, दही,
और चिकनाई खाना बंद कर दें, तो चिकनाई किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तेल में भी हो सकती है, नॉनवेज में भी हो सकती है, और दूध में तो होती ही है चिकनाई। दूध, दही, बटर, आइसक्रीम, सब में चिकनाई होती है। तो कुछ दिन के लिए अगर चिकनाई बंद कर दी जाए तो शर्तिया जो है शुगर ठीक होती है। इसमें कोई मतलब ये पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरी ठीक हुई उसकी ठीक नहीं होगी, सबकी ठीक होगी। जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच पानी पिएगा, किसी की 1 महीने में, किसी की 6 महीने में, लेकिन परमानेंट क्योर होता है। और उसका एक ही कारण है, अगर पानी अल्कलाइन है, अगर पानी ताजा है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपने मशीन के पास जाके पानी लिया है और आप पीने बैठे हैं, शर्तिया जो है आपकी सारी बीमारियों का हल इस ताजे पानी में है। अब ये ताजा पानी आपने बना लिया, फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं बहता हुआ पानी पीने का ये कॉन्सेप्ट है, कैंगन वाटर। ये कॉन्सेप्ट कोई पानी को स्टोर करने का नहीं है। जिसको भी अगर बीमारी है उसको मशीन का पानी, बहता हुआ पानी अगर वो तुरंत पिएगा, मशीन का निकला हुआ पानी, तो उसको अद्भुत लाभ होंगे। ये पूरा साइंटिफिक है। अगर आप जाके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट है फॉरेन में, जिनका एनर्जी या इस कैंगन मशीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े रिसर्च पेपर आपको उन वहां मिलेंगे कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या कर सकता है ना। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो अब कारों में आने वाला है, कारें, स्कूटर, टू व्हीलर भी एक समय आएगा कि जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही चलेंगे। जिसको आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं उसी को भारत सूरज बोलता है। सूरज की ताकत, पावर ऑफ सन, है ना, क्योंकि सूरज जो है 80% हाइड्रोजन है और 20% हीलियम है। तो जितनी भी प्रकृति आपको दिख रही है, इतने फूल आपको दिख रहे हैं, फूलों से मधुमक्खियां शहद बना रही हैं, कभी भी कोई भी फूल बिना सूरज की रोशनी के नहीं खिलता, हमने तो आज तक नहीं देखा है। तो सूरज की रोशनी, सूरज की ताकत जरूरी है किसी भी फूल को खिलाने के लिए और खुशबू पैदा करने के लिए। और जब सूरज अस्त हो जाता है, शरीर में कम हो जाता है, तब जो है चारों तरफ जो हम देखते हैं एक खराब प्रकार की बदबू जो है वो फैलती है। तो जिसको भी गैस बनती है, जिसको भी हम देखते हैं कि खाना पचता नहीं है, उसकी अग्नि जो है जब मंद हो जाती है तो खाना पचता नहीं है। जब बड़ी आंत में अधपचा खाना पड़ा रहता है तब उसको नीचे से गैस पास होता है, और छोटी आंत में जब अधपचा खाना जो सड़ता है तो ऊपर से डकारें आती हैं। तो जब हमारा सूरज कमजोर हो जाता है, जब हमारी अग्नि कमजोर हो जाती है, तो हमें दोनों प्रॉब्लम फेस होती है, या तो ऊपर से डकार आएगी या नीचे से गैस बनेगी। और इसका एक ही इलाज है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर। अगर ये सूरज की ताकत वाला पानी आप इमीडिएट मशीन से निकलने के बाद पी लेते हैं, 2 घंटे तक हाइड्रोजन पानी में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उड़ जाता है। आप भी पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से भी 2 घंटे बाद उड़ जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट शाम तक रहेगा। अगर आपने सुबह हाइड्रोजन रिच वाटर पिया है तो ऐसा नहीं आपको दिन भर पीना है। 1.25 लीटर पानी सुबह 1.25 घंटे में अगर हमने पी लिया, धीरे 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 करके, 2 छोटी छोटी बोतल में हमने निकाल लिया, आधा आधा लीटर की कांच की बोतल में। कोई भी बड़ा कैंसर रोग विशेषज्ञ कभी भी प्लास्टिक यूज नहीं करता, हमेशा कांच की बोतल यूज करता है। प्लास्टिक अगर यूज करेगा तो प्लास्टिक दबेगा नहीं, जैसा हमारी कैंगन वाटर कंपनी बनाती है। प्लास्टिक जो होता है दबता नहीं है, ठोस होता है पत्थर जैसा। तो प्लास्टिक कैसा होना कि वो दबे ना, और या तो फिर होना आपकी कांच की बोतल। तो कांच की बोतल में पानी कैसे रिएक्ट करता है हम ये भी देखेंगे, और प्लास्टिक में कैसे रिएक्ट करता है ये भी हम देखेंगे, समझेंगे कि ये पानी को रखना सेफ है। अच्छा, इसको गर्म करने से क्या होगा हम ये भी अभी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम लोग एक्चुअली चेक करने वाले हैं कि क्या ओआरपी जो होता है, ओआरपी जब हम लोग कैंगन वाटर यूज करते हैं या हाइड्रोजन बॉटल्स यूज करते हैं, तो जो ओआरपी होता है क्या वो गर्म करने के बाद, पानी को गर्म करने के बाद वैसे ही रहता है या नहीं। यानी कि ओआरपी जो है, जैसे कि अभी हम लोग इसका चेक कर रहे हैं, ओआरपी it is going into minus। सो बताना चाहूंगा ये एक्सियन का हाइड्रोजन बॉटल है जो हमारे अमेजोन स्टोर्स पे भी उपलब्ध है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नेगेटिव ओआरपी का पानी पीना है तो आप इसे खरीद सकते हैं हमारे अमेजोन स्टोर से भी। और ये ऑलमोस्ट आपको -350 तक ओआरपी का पानी आपको ये आराम से प्रोवाइड करता है। तो जैसे अभी हम लोग चेक करेंगे, इसको जितना देर रखेंगे उतना ये नेगेटिव में जाएगा ओआरपी जो है। और ये ऑलमोस्ट अभी 265 तक जा चुका है। तो अभी हम लोग इसको पानी को जो है
इसको हम लोग गर्म करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कितना उसका ओआरपी गर्म पानी का, यानी कि अगर हम लोग ओआरपी या फिर कैंगन वाटर हो या कोई भी पानी हो उसको गर्म करते हैं तो क्या उसका ओआरपी कम होता है। तो अभी हम लोग इसको गर्म करेंगे और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग जो है हमारे पास में थर्मल गन है, इसको मैं यूज़ करेंगे। तो अभी 37 डिग्री है ये, तो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी कि पानी जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कम से कम 100 डिग्री तक ये पानी जो है ये गर्म हो जाए। 100 नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसको हम लोग 70-80 डिग्री तक तो भी गर्म करेंगे। और फिर हम लोग 70-80 नहीं, सॉरी, इस मीटर को हम लोग ज़्यादा 50 डिग्री के ऊपर जो है हम लोग नहीं चेक कर सकते। तो 50 डिग्री बस हो गया। इसके ऊपर हम लोग ओआरपी मीटर जो है इसको डैमेज ना हो इसीलिए हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करेंगे पानी का। तो ये 53 डिग्री तक हुआ है पानी गर्म। ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, बिकॉज हमारे मीटर को ख़राब नहीं करना है। थोड़ा सा पतीला भी गर्म हो गया है। पानी नॉर्मल गर्म है और हम लोग मीटर को जो है इसमें डालते हैं और देखते हैं ओआरपी का क्या कंडीशन है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ओआरपी जो है अभी भी माइनस है। ओके, यानी कि अगर हम लोग हाइड्रोजन वाटर को गर्म भी करते हैं 50 डिग्री तक तो थोड़ा सा ओआरपी जो है वो लॉस हुआ है, ज़्यादा नहीं। -250 है तो 10-15 पॉइंट्स का फर्क पड़ा है, लेकिन कांस्टेंट है अभी भी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 50 डिग्रीज तक अगर पानी गर्म करके पीते हैं इमीडिएटली, मतलब आपने कैंगन वाटर को निकाला और इमीडिएटली गर्म किया और 50 डिग्रीज यानी कि थोड़ा सा ल्यूकवार्म किया, तो उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं जाते हैं। तो ये टेस्ट हमने किया है दोस्तों। तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके कैंगन वाटर को जो है या फिर हाइड्रोजन बॉटल के वाटर को जो है थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं और 50 डिग्री तक आराम से गर्म करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये पानी का जो ओआरपी है वो कम नहीं होता है। और अगर आपको इससे बेटर सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आप पानी गर्म कर लीजिए, फिर आपके हाइड्रोजन बॉटल में डालिए 50-60 डिग्री का। तो उससे क्या होगा, गर्म पानी जब आप यूज़ करेंगे तो आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा। कैंगन वाटर में हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग हॉट वाटर डाल दें और फिर उसको जनरेट करें। जब हम लोग हॉट वाटर यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन जनरेशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि जो पीपीएम से पीपीबी है हाइड्रोजन का वो भी बढ़ जाता है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है। अदरवाइज अगर आप कैंगन वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ सिंपल कि आप गर्म पानी से थोड़ा सा गर्म करेंगे 40-50 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप उसे गर्म पानी करके पी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन जो होता है, आयोनाइजेशन जब भी होता है गर्मी में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पानी है तो आयोनाइजेशन सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन होता है। ठंड में आयोनाइजेशन पुअर होता है। जब हम ठंड में कैंगन पानी बनाते हैं तो ठंड में हमेशा पानी को गर्म पानी अगर हम मशीन को देंगे, कितना गर्म देंगे, जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अगर दिया जाएगा, जनरली उस समय टेम्परेचर 16, 17, 18 ऐसा चलता है, तो 22 होता है ज्यादा से ज्यादा, और रात को तो और कम हो जाता है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अद्भुत आयनाइजेशन, अद्भुत हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो इस बात को हमें देखना है। अब जो कैंसर पेशेंट है उनके घर में अगर ये मशीन है तो वो कैसे करेंगे, तो वो पानी साधारण जो भी नॉर्मल पानी है वो आरओ का या नदी का पानी जो भी वो लोग यूज कर रहे हैं उस पानी को गर्म करें, ठंडा करें, गर्म करें, ठंडा करें, गर्म करें, ठंडा करें। पहले गर्म किया, पानी में 100 डिग्री पे पानी गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, फिर उसको ठंडा कर दें। तो ठंडा करेंगे मतलब कितना,
30-40 डिग्री पे ले आए उसको गुनगुना, फिर उसको गर्म करें, फिर उसको गुनगुना कर दें। ऐसा बार बार जब आप करेंगे 10 बार, और उसके बाद उस पानी से जब आप कैंगन वाटर बनाएंगे, तो वो पानी जो है रामबाण साबित होता है कैंसर पेशेंट के लिए। हमने कई बार करके देखा है, और इसमें रशियन साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर हैं, पानी को जितनी बार गर्म किया जाएगा और जितनी बार ठंडा किया जाएगा, पानी हमेशा एक नई प्रॉपर्टी लेके आता है, वो पानी वैसा नहीं रह जाता जो सबसे पहली अवस्था में था। तो ये जो है रिसर्च पेपर है, बताते हैं कि पानी को 1000 बार वैज्ञानिकों ने गर्म किया, 1000 बार ठंडा किया, और वो पानी पानी नहीं रहा दोस्तों, वो कुछ अद्भुत सॉल्यूशन बन गया, अद्भुत बन गया, अद्भुत बन गया। इस बात, ये सारा काम आज से जो है 100 साल पहले हो चुका है, पानी पे इतना काम हो चुका है। तो जब हम पानी को सही करते हैं और सही पानी से जब कैंगन वाटर बनाते हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां जिसका हम नाम लेते हैं, है ना, ये लकवा है, मिर्गी है, आपका ये कैंसर है, ट्यूमर है, तो जब इस प्रकार से कैंगन वाटर बनाया जाता है तो वो अद्भुत लाभ करता है। जितनी बड़ी बीमारी, उतना शुद्ध पानी मशीन को दो, और मशीन आपको उससे भी महाशुद्ध पानी बना के दे देगी। तो ये कहते हैं ना जल चिकित्सा, उसमें ये हमने जब जब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तब हमने ये देखा कि ये भी एक तरीका है बहुत सुपर पानी बनाने का। लेकिन हमने आज ये भी देखा कि अगर पानी को हम 50 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं, तो 15 का नुकसान हुआ। मतलब ओआरपी जो 265 था माइनस में, वो 250 हो गया। मतलब अगर 70-80 डिग्री तक अगर इसको गर्म किया जाता, तो ये ओआरपी तेजी से जो है आधा हो जाता। तो अगर लोग पूछते हैं कि क्या करें, पानी को गर्म करके पिए क्या, तो कितना गर्म कर सकते हैं, हमने देखा 50 डिग्री तक अगर पानी को गर्म करते हैं गुनगुने से थोड़ा ऊपर, तो ओआरपी नष्ट नहीं होता है, तो जो का त्यों एज इट इज रहता है ना। हमने ये भी देखा अभी यहाँ पर कि ठंडे पानी से आयनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन कैंगन मशीन कितना पानी दे सकते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का पानी भी हम मशीन को देंगे। बहुत ज्यादा गर्म पानी देंगे तो मशीन में एक सेंसर लगा हुआ है, वो बोलेगा हॉट 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 करके, मशीन चिल्लाने लगेगा कि मुझे गर्म पानी मत दो। इतना अद्भुत सारा जापान ने इसमें लगाया हुआ है। तो जब भी हम गुनगुना पानी मशीन को देंगे, बहुत अद्भुत कैंगन वाटर बनेगा, क्योंकि जितना गुनगुना पानी उतना ज्यादा अच्छा आयनाइजेशन, क्योंकि सूरज का मतलब भी होता है गर्मी, तपन। तो कभी भी जो हम डेमो भी आप लोग करने जाते हैं, आप बाजार से चिलर मंगा लेते हैं जिसमें ठंडा पानी होता है, और फिर डेमो फेल हो जाता है, आपका तेल नहीं टूटता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका वजह होता है कि हमने उस चिल्ड पानी में गर्म पानी डाल के उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। कई बार आपके डेमो फेल हो जाते हैं, तेल नहीं टूटता, प्रॉपर कलर नहीं आता, क्योंकि आयनाइजेशन होता ही नहीं है ठंडे पानी में। तो जब भी आप लोग डेमो देने जाएं और आप इस प्रकार के बाजार से जो पानी खरीद के डेमो करते हैं, हमेशा हाथ डाल के चेक करें कि वो पानी ठंडा तो नहीं है। ठंडा अगर पानी है तो उसको गुनगुना कर दें, उसको रूम टेम्परेचर पर ले आएं या उससे थोड़ा सा अधिक। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका डेमो कभी फेल नहीं होगा। ये हमेशा हम लोग ये गलती करते हैं कि हम टीडीएस भी चेक नहीं करते, और हम पानी कितना ठंडा है ये भी नहीं देखते, सीधे ठंडे पानी को हम मशीन को दे देते हैं, और फिर जो भी आता है रिजल्ट आप देखते हैं, यार यार ये क्या हो रहा है, मेरे घर पे तो अच्छा पानी बन रहा था। वो अच्छा पानी इसलिए बन रहा था कि वो रूम टेम्परेचर का पानी था। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लोग बाजार से पानी खरीदते हैं, उसका टेम्परेचर देखिए, वो अगर बहुत पानी ठंडा है तो आयनाइजेशन तकलीफ में आ जाएगा, नहीं होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अगर होगा, गुनगुना पानी होगा, तो बहुत अच्छा आयनाइजेशन होगा। तो ये आज ये वाला पॉइंट भी आज क्लियर हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि पानी मशीन को कैसा देना है ना। मशीन को ठंडा पानी देंगे तो मजा नहीं आएगा, वो साइंटिफिक जो पूरा समीकरण है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो अब एक सवाल आता है कि चलो हमने कैंगन पानी तो बना लिया, हाइड्रोजन की भी अभी बात हो गई, पानी को गर्म करके पिएंगे तो क्या है, ये भी सारी बात हो गई। अब पानी को हम रखेंगे काहे में, इस पे भी बात करते हैं। पानी को कैंसर वाला भी अभी यहाँ डिक्लेयर हो गया कि कैंसर वाला किस तरीके से पानी का सदुपयोग करे, कितनी बार पानी को गर्म करे। तो एक बड़ा पतीला ले जिसमें 5-10 लीटर पानी डाले, और प्रॉपर उसको जो है 10 बार गर्म करे, ठंडा करे, फिर उससे कैंगन बनाए। वो 15 बार 20 बार भी कर सकता है, जैसी उसकी इच्छा, लेकिन 10 बार तो मिनिमम करे। इतना अगर वो करता है तो बहुत अद्भुत पानी बनेगा। घुटने दुख रहे हैं, कैंसर हो रहा है, आपको जो है परेशानियां हैं, जमाने भर के डॉक्टर ने बोला है घुटना बदलना ही पड़ेगा, है ना, L4 L5 में गैप गैप है, बोला है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो ये अद्भुत चमत्कारी तरीके से अगर आप कैंगन वाटर बनाते हैं, तो शर्तिया जो है ये सारे काम हमारे हो जाते हैं, जो हमें जो रिलीफ चाहिए वो हो जाता है। जिस चीज का इलाज ऑपरेशन में हम ढूंढ रहे हैं, वो काम पानी ही कर देता है, क्योंकि हम 70% पानी है, ब्रेन में 90% पानी है। सो हो सकता है ये वीडियोस आपके काम के हों, आपको कुछ इससे फायदा हो सकता है। तो अगर ये अभी रिकॉर्डिंग भी इसका आ जाएगा,
तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों वीडियो फायदे के हैं तो कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं या वाई टाइप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन प्रॉपर, ये सेशन हमारा चलता रहे, है ना। काफी लोग यस टाइप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नई जानकारी थी काफी लोगों के लिए ये, कि ये पानी को का ये नया जो आज एक उपयोग हमने सीखा कि ये पानी इस प्रकार से मिरेकल कर सकता है। अब हम चलते हैं आगे, पानी की बात करते हैं। पानी बना तो लिया, अच्छा अच्छा पानी बनाना भी सीख लिया, गर्म पानी के क्या नुकसान होंगे ये भी हमने देख लिए, है ना। पानी, अच्छा पानी गर्म करेंगे नहीं, गर्म करके अच्छा पानी बनाओ, अच्छे पानी को गर्म मत करो, नहीं तो उसका ओआरपी कम हो जाएगा। 50 डिग्री तक ही गर्म करें, है ना, ये हमने आज यहाँ सीख लिया है। तो अब इस मामले में तो कोई भी गलती नहीं करेगा, ठंडे पानी से कोई भी डेमो नहीं देगा, कैंगन वाटर बनाने की कोशिश नहीं करेगा, फ्रिज का पानी लिया उसको कैंगन मशीन को दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो अगला हम देखते हैं कि अब कैंगन पानी को बना लिया, अब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे इस पानी को, है ना, कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, तांबे में रखेंगे तो क्या होगा, है ना, अलग अलग बर्तनों में रखेंगे तो पानी कैसे बिहेव करेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्पेश सुगेशिया फ्रॉम वाटर वेल्थ ग्रुप। सबसे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब के लिए। आज मैं आपको मार्केट में जितने भी कैंगर यूजर्स है उसके माइंड में जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केट के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन था कि भाई कैंगन का वाटर, कैंगन का पानी कैसे पीना चाहिए, कैंगन का पानी कहाँ पे रखना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। आई हाईली रिकमेंड टू यू, दिस इज द लाइव वाटर ड्रिंकिंग कंसेप्ट। अगर कैंगन वाटर का पानी आप पी रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ये लाइव पीजिए। जितना आप लाइव पिए आपकी सेहत इतनी अच्छी बनेगी। फिर भी अगर आप ये पानी स्टोर करके पीना चाहते हैं तो मैं आपको बात बताऊं कि पानी स्टोर करने के बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई किस बर्तन में पानी स्टोर करना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज मैं ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा भाई मार्केट में जितने भी बर्तन अवेलेबल है वो बर्तन में कैसे स्टोर करते हैं और कितने टाइम, ज्यादा टाइम स्टोर करने के बाद पानी की जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मार्केट में जो ज्यादा चलने वाले जो बर्तन है, ज्यादा चलने वाले, ज्यादा स्टोर करने वाला जो बर्तन है वो मिट्टी का बर्तन। मैं आपके साथ एक मिट्टी का बर्तन लेके आया हूँ, ये देख लीजिए मिट्टी का बर्तन। और दूसरी बात करूं अभी मिट्टी के बर्तन के बाद स्टेनलेस स्टील का बर्तन, तो अपने पास ये स्टेनलेस स्टील का बर्तन है। तीसरी बात करूं तो तीसरे नंबर पे ये कॉपर का बर्तन, और चौथे नंबर की बात करूं तो ग्लास का बर्तन, तो अपने पास ये ग्लास का बर्तन है। और पांचवें नंबर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मार्केट में जो चलता है वो नॉर्मल प्लास्टिक के जो बर्तन है ये वाले, ये नॉर्मल प्लास्टिक के बर्तन। और छठे नंबर की मैं जो बात करूं तो बीपीएफ जो प्लास्टिक है, कैंगन की एनर्जी की बोतल है बीपीएफ फ्री प्लास्टिक। तो हमारे पास ये सब बर्तन रखे हुए हैं। आज मैं आपको इन बर्तन में कैंगन का वाटर डाल के लाइव कंसेप्ट पानी स्टोर करके 24 आवर्स के बाद ये पानी में क्या क्या प्रोसेस हो रहा मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, पहले इन बोतलों में हम कैंगन वाटर का पानी भरते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये सब बर्तन में लेवलिक जूनियर 2 डिवाइस का पानी, कैंगन वाटर का पानी हमने भर दिया है। अब हम सभी बर्तन का जो पानी है सबका हम ओआरपी चेक करते हैं, बाद में सबका हम पीएच चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मिट्टी का बर्तन है, उसका पहले हम ओआरपी चेक कर लेते हैं, बाद में हम उसका पीएच चेक करेंगे। सबका हम पहले ओआरपी चेक कर लेते हैं। कॉपर का बर्तन, ये हो गया अपना एसएस का बर्तन, ये हो गया अपना ग्लास का बर्तन,
ये हो गया अपना नॉर्मल प्लास्टिक का बर्तन और ये हो गया अपना बीपीए फ्री प्लास्टिक का बर्तन। तो फ्रेंड्स, हम सबका ओआरपी चेक करते हैं। मेरे हाथ में ओआरपी डिटेक्टर डिवाइस है, जिनमें आप चेक करते हैं कौन से पानी का कितना ओआरपी है। आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन के पानी में ओआरपी आप देख सकते हैं। नियर अबाउट 560 के करीबन है। अब मैं कॉपर के पानी में टेस्ट करूंगा, कॉपर के बर्तन में इंडियन वाटर का ओआरपी नियर अबाउट 563 है। वही मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में चेक करूंगा ओआरपी। नियर अबाउट 578। वही मैं कांच के बर्तन में चेक करूंगा। नियर अबाउट 558। वही मैं नॉर्मल प्लास्टिक का जो बर्तन है उसमें चेक करूंगा। नियर अबाउट 564। वही मैं जो बीपीए फ्री प्लास्टिक है उसमें चेक करूंगा। नियर अबाउट 567। तो दोस्तों, आपने देखा सब बर्तन की जो ओआरपी है नियर अबाउट 560 के करीबन है। अभी मैं आपको सबका पीएच चेक कराऊंगा, सब मोटर का पीएच चेक करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कॉपर का बोतल का पानी का जो पीस का है हल्का सा नीला है, हल्का सा नीला है। आप देख सकते हैं सबका पीएच वैल्यू चेक किया, ऑलमोस्ट सब नियर अबाउट अल्कलाइन है। अभी हम क्या करते हैं, इस सब बोतल को इधर रहने देते हैं। हर बोतल का 1 घंटे के बाद बोतल का जो ढक्कन है खोल के बाद में वो एयर के साथ उसका प्रोसेस होने देते हैं। बाद में हम हर 24 आवर्स के बाद फिर वापस चेक करेंगे सबका ओआरपी कितना है और सबका पीएच वैल्यू कितना है।
अगर उसमें कुछ डिफरेंट होता है, क्या फर्क होता है, मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 24 घंटों से ये सब पानी के सब बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं। इन 24 घंटों में इन सारी बोतल में पानी में क्या बदलाव आया, ये हम देखेंगे। इससे पहले मैं एक आपको बता दूं कि 24 घंटों में हमने हर 2 घंटे में सभी बोतलों का ढक्कन खोल के वैसे ही 2 मिनट छोड़ दिया था, ये जानने के लिए कि हवा में एयर के साथ ये प्रोसेस करके पानी में कितना बदलाव आ रहा है। ये जानने के लिए हमने सभी बोतलों के ढक्कन हर 2 घंटे में ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। ये लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड, ये जानने के लिए अब क्या होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सभी बोतलों में से पानी एक ग्लास में ले लेते हैं, तो ग्लास में डाल के सभी की पहले हम ORP चेक कर लें। लेट्स डू। पहले हम मिट्टी का जो बर्तन है उनका पानी ले लेते हैं, ग्लास में डाल देते हैं। ये मिट्टी का बर्तन बाद में डाल देते हैं। कॉपर का बर्तन है। अब हम सबका ORP चेक करते हैं। तो पहले हम मिट्टी का बर्तन है उनकी ORP चेक करते हैं, देखते हैं इनकी ORP में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इनकी ORP प्लस 160 में आ गई है, करीबन 160। आप देख सकते हैं इनकी ORP करीबन 160 में ORP हो गई। इसका मतलब हुआ कि ये जो पानी है आफ्टर 24 आवर्स के बाद ऑक्सीडेंट हो गया पूरा। अब हम चेक करते हैं कॉपर का बर्तन। कॉपर का उनकी ORP करीबन -356 के करीबन है, यानी अभी भी ये एंटीऑक्सीडेंट पानी है। कॉपर का पानी आफ्टर 20 आवर्स के बाद अभी भी ये एंटीऑक्सीडेंट पानी है। हम क्या करते हैं, सबकी ORP एक बार लिख लेते हैं, बाद में कंपैरिजन करने के लिए हमको पता चले। अब हम चेक करते हैं SS का बर्तन का जो पानी उनकी ORP। फ्रेंड्स, जो SS के बर्तन का जो पानी है उनकी ORP करीबन प्लस 130 हो गई, यानी ये पूरा ऑक्सीडेंट पानी हो गया। अभी हम जो ग्लास का पानी है उनकी ORP चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ग्लास का जो पानी करीबन उनकी ORP -299 यानी -300 के करीबन है, यानी अभी भी ये पानी एंटी ऑक्सीडेशन आफ्टर 20 आवर्स के बाद अभी भी ये पानी एंटी ऑक्सीडेशन। अब हम जो नॉर्मल प्लास्टिक की जो बोतल में हम स्टोर करते हैं उनका ORP आफ्टर 24 आवर्स के बाद करते हैं चेक, क्या बदलाव आ रहा है वो देखते हैं। सो फ्रेंड, उनकी ORP है जो करीबन प्लस 63 या 64 के आसपास है, यानी ये भी पानी आफ्टर 24 घंटों के बाद पूरा ऑक्साइड हो गया है।
वे लास्ट में ये बीपीए फ्री जो प्लास्टिक की बोतल है उनका पानी हम चेक करते हैं। अभी उनका हम देखें तो -285-86 के करीब बनी, यानी ये पानी भी आफ्टर 24 आवर्स के बाद भी पूरा एंटीऑक्सीडेशन। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन सभी बोतलों में जो पानी रखा था 24 घंटों तक हमने रखा था। 24 घंटों में हमने हर 2 घंटे में सभी की बोतल का ढक्कन खोल के एयर के साथ में प्रोसेस किया। अब 24 घंटों के बाद ये जो रिजल्ट मिला है एक शॉकिंग रिजल्ट है। जो आपने देखा कि मिट्टी के बर्तन के अंदर जो पानी की ORP है ज्यादा हो गई है, एंटीऑक्सीडेंट से ऑक्सीडेंट में हो गई है, यानी कि जो पहले करीबन 560 -560 था करीबन 161 प्लस में आ गए। यानी हम देखते हैं तो सबसे अच्छी जो पानी की क्वालिटी जो आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो बनी रहती है वो है अपनी कॉपर की बोतल है, दूसरा है ग्लास की और तीसरा है बीपीए फ्री प्लास्टिक की बोतल में। तो फ्रेंड्स, आप कंपेयर कर सकते हो और ये रिजल्ट देखने के बाद आप अपने हिसाब से कौन से बर्तन में पानी स्टोर करना है वो आप देख सकते हैं। अभी ये ORP की बात होगी, अब हम सबकी pH वैल्यू चेक करेंगे। वो चेक कर लेते हैं। अपने पास कोई pH इंडिकेटर है, सब में हम 2-3 बूंद डाल के pH सबकी चेक करते हैं। सो फ्रेंड, आपके सामने रिजल्ट सामने है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली सभी पानी की जो बोतल है उसकी pH वैल्यू ऑल सिमिलर नियरेस्ट अबाउट अल्कलाइन, लेकिन ये जो मिट्टी का बर्तन है और कॉपर का जो बर्तन है उसकी pH वैल्यू थोड़ी सी डाउन हुई है। अब मैं कंपेयर करता हूँ आप सबको एक साथ में, आप देख सकते हैं उसके पानी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आप देख सकते हैं सब। हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश हो रहा है, यानी उसकी pH वैल्यू थोड़ी सी कम हो रही है। ये मिट्टी का बर्तन है और ये कॉपर का बर्तन है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ग्रीनिश पे आ रहा है, इसका मतलब उसकी pH वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। सो फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलता है कि सबसे अच्छा हम बताएं कि आफ्टर 20 आवर्स के बाद कौन सा पानी अच्छा है स्टोरेज करके पीने के लिए सबसे अच्छा पानी कौन सा अच्छा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने ये रिजल्ट निकाला हुआ है। अगर आप पानी स्टोर करके पीते हैं तो हमारे पास मार्केट में जितने भी स्टोर करने के लिए जितने भी चीज अवेलेबल, जैसे हमने बताया मिट्टी का बर्तन, कॉपर का हो गया, स्टेनलेस स्टील का हो गया, ग्लास का हो गया, नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल हो गई, बीपीए फ्री प्लास्टिक की बोतल हो गई, इन सभी में हमने देखा कि किसी का तो pH वैल्यू कम हो रहा है, किसी का ORP माइनस हो रहा है। तो इन सभी में सबसे बेस्ट जो स्टोर करने के लिए हमने रिजल्ट में देखा, तो पहले नंबर पे हम बताएंगे तो ग्लास आता है, दूसरे नंबर पे बताएंगे तो अपना बीपीए, दोनों सिमिलर है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो अपना कॉपर आता है। फर्क क्या आता है, ये जो ग्लास और ये बीपीए फ्री प्लास्टिक है उनका ORP बना रहता है और pH वैल्यू भी इसमें बना रहता है। लेकिन कॉपर की मैं बात करूं तो उसके ORP तो बढ़िया है, लेकिन थोड़े 24 आवर्स के बाद उसकी जो pH वैल्यू है, अल्कलाइनिटी, वो कम हो रही है। इससे ये रिजल्ट मिलता है। ज्यादातर हमें जो पानी जो है स्टोर करके ग्लास की बोतल या बीपीए फ्री जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें आप रख के स्टोर करके रख सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ये आप कमेंट में डाल सकते हैं, अच्छा नहीं अच्छा जो भी है। सो ये सारी चीजें हैं कि मट्टी के बर्तन में कुछ लोग कैंगन पानी को रख देते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया, वो पानी सामान्य पानी की तरह हो जाता है ना। तो मट्टी का बर्तन भी देख लिया, कॉपर में भी हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका पीएच जो है वो कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि कल भी हमने पीएच पे बड़ी बात की थी कि वोल्टेज, पीएच सारा कल हमने क्लियर किया था। तो कहने का मतलब सबसे अच्छी बोतल निकली कांच की, और दूसरी नंबर जो है हमारी एनर्जिक जो प्रोड्यूस करती है नीली वाली, और तीसरे नंबर पे आया कॉपर, है ना। तो तांबा जो है अच्छा या बुरा, तो हम देखते हैं कि तांबा तीसरे नंबर पे आया है, और बाकी जो है नंबर 1 पे आया है कांच, नंबर 2 पे आया है आपका प्लास्टिक की बोतल, कौन सी, जो एनर्जिक कंपनी में जो मिलती है वो। तो कॉपर में क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके लिए भी हमने एक वीडियो दिखाया था कि तांबे, बहुत ज्यादा तांबा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है ना। तो नुकसान करता है, और इसके लिए वापस अगर हम देखते हैं, अगर हमें वीडियो मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैटर है, तो कभी अगर मिल जाए हमें तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि हमने दिखाया था, हमको याद है वीडियो हमने जूम में दिखाया था तांबे के ऊपर कि कैसे रखना चाहिए। स्क्रीन लिया था हमने, एक मिनट देखते हैं, जूम 3, वो भी क्लियर हो जाएगा पूरा। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हमें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। अपने देश में जो है कांपर के बाटल में पानी पीने का प्रावधान है। कांपर क्या करता है, एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। अगर मान लो ये कांपर का है हमारे पास, वैसे कांपर का है, मैं लेके आऊं, मिल जाएगा क्या? देखो लेके आता हूं। ओके, ये है हमारे पास कांपर का जग। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में कांपर में बाटल में पानी पीने का बहुत ज्यादा प्रावधान है। इससे क्या होता है कि कांपर में जब पानी रखते हैं तो इसका कांपर जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें पानी में जो भी जर्म होते हैं वो मारे जाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन वो हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है दो तरीके से। पहला कि जो हम पानी में इधर छोटा मोटा जर्म हम पी भी रहे हैं तो हमारे बॉडी को धीरे धीरे एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उतनी ज्यादा इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग होता है। अगर हम उसको बैक्टीरिया पहले से हम मार देंगे तो हम अपना उतना इम्यूनिटी हमारी वीक रहेगी। इसलिए आपको कप के जग में पानी ना पिए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश में, खासतौर पर इंडिया में ही पिया जाता है, बाहर कहीं नहीं पिया जाता है। दूसरा मेन कारण है जो कापर रिस रिस के जाता है अंदर, आपने देखा होगा उसके शरीर उसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है ऑक्सीडाइज हो करके। तो उसका जो कापर वाला पार्ट आपके शरीर में जाता है वो कापर आपके लीवर को खराब कर सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकती है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभार इक्का दुक्का बार पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी लाइफ टाइम कभी भी इसको जो है अपना जीवन संगनी बना के मत रखिए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कापर हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होता है, उसके लिए क्या? तो जैसे हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं, देखो दो प्रकार का होता है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है, जो कि बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो कापर जो है ट्रेस वाले में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, जो कि आपके खानों में पर्याप्त मिल जाता है। तो अलग से पानी में घोर के कापर पीने की जरूरत नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है। ओके, तो ये सारा आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है हाइड्रोजन काम करता है, किस तरीके से पानी को रखना है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी को मट्टी के बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा ये पानी खराब हो जाएगा अगर हम इसको मट्टी में रखेंगे, इसको हम स्टेनलेस स्टील में रखेंगे, इसको हम प्लास्टिक की पिचकने वाली बोतल में रखेंगे, तो ये खराब हो जाएगा, पानी किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसका सबसे अच्छा दोस्त है कांच, दूसरा बीपीए फ्री प्लास्टिक, और तीसरे नंबर पर आया कॉपर। और कॉपर का भी हमने जान लिया कि कॉपर में पानी पीना, रोज रोज पीना सुरक्षित नहीं है।
तो ये जो एक एक मिथ थी है ना, साइंटिफिक तरीके से हम जब बात करते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है, अगर हम समझ गए तो हम मशीन का उपयोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। सो दिनेश पंत जी को अनम्यूट करते हैं और फिर इस सत्र को समापन की ओर ले जाते हैं। हाँ दिनेश जी, अनम्यूट करें खुद। दादा, जो आपने इंफॉर्मेशन आज दी, मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आज से करीब 42 साल पहले अष्टांश वाटर मैंने अपनी बड़ी बेटी को दिया था। ये आयुर्वेद के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो वो प्रोसेस यही था कि जो हमारा जो स्टोर्ड वाटर होता था, उसको हम 8 बार उसको हम बॉईल करते रहते थे, 8वां हिस्सा रह जाता था। उस पानी की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, अभी आप बोल रहे थे कैंसर के लिए, सही बात है। अगर हम सही उपयोग करें इसका और सही बर्तन में स्टोर करें। ट्रेस मेटल की बात डॉक्टर अब इन्होंने करी थी, लैब एट होम है, अमेरिका में है जो। इन्होंने भी इसको बोला कि ट्रेस मेटल को थोड़े उसमें लेना है। तो मैंने इसमें खुद भी अभी कुछ मन बनाया है, बॉटल स्टोरेज के अलावा भी। उसमें हम ये करेंगे कि पहली तो बीपीए फ्री प्लास्टिक की बात करेंगे। आपने हार्ड प्लास्टिक बोला, बट शुड बी बीपीए फ्री, अदरवाइज उसमें वो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, ग्लास की बात करी तो जितना वो नैरो मुंह का होता है बॉटल, मैंने ऑलरेडी इस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ, और भी बहुत बढ़िया रहता है। कॉर्क से लगा हुआ हो तो और अच्छा रहता है। तो ये हमको स्टोर करने के लिए बहुत ध्यान रखना है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम बहुत अच्छे नतीजे चाहते हैं तो अपने सोर्स वाटर को, जो हम अच्छा समझ के पी रहे हैं, उसका आप बढ़िया टेस्टिंग करा लीजिए। वो भी सीजनल कराना पड़ेगा, 2 बार, बरसात के बीच में और उससे पहले भी, क्योंकि उसमें ही छिपा हुआ है रहस्य कि उसके अंदर कितने कौन कौन से कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, मैग्नीशियम कितना है, ऐसा पता चल जाएगा। यही डिसाइड करता है हमारे बॉडी के एल्कलिनिटी को और हमारे डिजीज मैनेजमेंट को। एक और एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने के लिए मैं बर्तन ले आया हूँ। हम कुछ टाइम, क्योंकि ट्रेस मेटल चाहिए ना, हमको कॉपर चाहिए, कुछ टाइम उस पानी को हम रखें, रात को रख लें, 2-4 घंटे के लिए रख लें, और उसका उसको अलग तरीके से उसको सुबह प्रोसेस करके एक बार ले लें, मॉर्निंग में एक बार सिर्फ। क्या कहते हैं, तांबे का बर्तन का पानी में सुबह पीना है। अगर वो हम एक बार कॉपर के बॉटल का पानी पी लें बस, और दिन भर अपना 2-3 बार वो पी लें, फ्रेश पी लें, तो फिर उसके रिजल्ट ही मिराकुलस हो जाएंगे। तो हम कोई भी चीज को जो वैज्ञानिक आधार पर आप इतनी गहराई से ढूंढ के लाते हैं, ये बहुत आसान काम नहीं है। ऋणी रहेगा इसमें पूरा समाज कि आपने जो दिशा दी है, इस चीजों को संकलन करके सिर्फ बेचने की बात नहीं करी, बिकना तो है ही उसने, पर रिजल्ट की बात करी जाए तो अति बढ़िया रिजल्ट हम मिलेंगे। समझदारी यही है कि समझदारी से इसको हम रखें, और साथ में इसको हम समझदारी से उपयोग करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं डाइट के साथ, जो आप बताते हैं व्यवसाय जी की डाइट को कभी हल्केपन से ना लीजिए। तो इसको करेंगे तो उससे हम नतीजे और अच्छे लेंगे। एज रिवर्सल में जो भी लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, वो इसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इस बार जब हम हरिद्वार में मिलेंगे, मैं वो लिटरेचर लेके आने वाला हूँ ताकि इसमें हम आगे और कुछ प्रोड्यूस कर सके। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा लगा आज का बिल्कुल। तो संतोष भयकर जी पूछ रहे हैं कैंगन मशीन को कितने टेम्परेचर का पानी दे, तो मैंने बोला कि जितना गुनगुना पानी देंगे तो बहुत अच्छा है, ठंडा पानी मत दीजिए, ये हमारी आपसे जो है रिक्वेस्ट है ना। गुनगुना पानी होता है 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। सो हाँ हाँ, जगदीश जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड सबसे मॉर्निंग। पहले सभी को नमस्कार सर। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन सर, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जब कुछ चीज़ें सर पहली बार ही सुनने समझने मिली है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी हमारे लिए आगे। सर मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर अचानक जैसे कभी गर्दन की नस वगैरह जो लग जाती है, सर ये किस वजह से होता है, और इसमें नेचुरली हील किस तरीके से होती है, या फिर सर थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे इस बारे में। नहीं मतलब ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि गर्दन सर अकड़ गई है, सर्वाइकल हो गया है, क्या नहीं सर, आप जानना चाह रहे हैं? सर्वाइकल सर्वाइकल नहीं सर। कल जैसे अचानक मैं कुछ काम कर रहा था, और अचानक मेरे गले की नस लग गई और हम्म। पेन हो रहा है मुझे। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता था कि ये ऐसा अचानक जो होता है, इसकी वजह क्या है, इसको नेचुरली हील करना चाहिए या इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, जस्ट देखिए, अगर ऐसे आप करें। अगर आप योग करते रहेंगे, प्रॉपर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहेंगे, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। पर हम क्या है, एक्चुअली हमारी जांच भी नहीं कराते ना। जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम में बताया है कि लीवर को हम बाहर से ही चेक कर सकते हैं, गर्दन का नाप ले लें, कमर का नाप ले लें, पूरी बॉडी को एक बार हमारी जो है बाथरूम में कांच में खड़े होकर देख ले कहाँ कुछ मोल्स चट्टे हो रहे हैं, जिससे हम हर महीने हमारी बॉडी का एग्जामिनेशन करें। और अब गर्दन चटक गई, अब हमारी तो नहीं चटकती कभी,
तो अगर ये छिटक रही है तो इसका कारण क्या है? तो ये हर हो सकता है कि हमने जो कॉलेज में बहुत सारा योग किया है, कंटिन्यूसली 2-2 3-3 घंटे जिमिंग किया है, तो जो है वो, क्योंकि एक बार आप कोई काम करते हैं तो उसका असर 5-5 8-8 साल तक रहता है जब आप कुछ क्वालिटी करते हैं। तो थोड़ा सा आप ये सोचिए कि हर ऑर्गन का हमारे एक व्यायाम है। आंखों का भी व्यायाम होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जैसे गर्दन के भी व्यायाम होते हैं। तो अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो हमको ये करना चाहिए। जैसे अब ये जूम खत्म होने के बाद थोड़ा सा बैठिए, दरी पर वज्रासन में बैठने की कोशिश करिए, हाथों को ऊपर ले जाएं, है ना। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जानवर भी रोज करता है, हम देखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है ना, शेर है, ये सब लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, करवट बदलते हैं, रीढ़ की हड्डी को घुमाते करते हैं। तो ये सब चीज अगर आप करेंगे तो आपको 100% जो है इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि उसका व्यायाम हो जाएगा। जब दबाव और खिंचाव रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, या तो आप समझ लो टॉवेल को जब हम निचोड़ते हैं, या बनियान चड्डी जब हम धोते हैं तो निचोड़ते हैं, तो ऐसा शरीर की उस हड्डी को भी निचोड़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले वही हड्डी बनती है। और ये पूरी 33 फ्लोर की एक बिल्डिंग है ना, जिसमें जो है मन के लगे हुए हैं, 33 मन के, आपकी मेरी सभी की बच्चों की बॉडी में। तो ये जो मन के होते हैं, ये बने होते हैं, ये अल्कलाइन होते हैं, पूरी हड्डी ही अल्कलाइन होती है। उसके अंदर से जो नसें चलती हैं, वो पूरा उसमें से ब्लड सर्कुलेशन होता है, बाल से छोटी नसें होती हैं। तो जब आप ये करते रहेंगे, है ना, अननेसेसरी की चीजें जब शरीर में जाती है और स्पेस खत्म होता है, तब जाके इस प्रकार से होता है। ये टेम्पररी है, ये इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर गर्दन में कोई झटका आ जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा सा जो है आप मतलब घबरा गए कि यार ये क्या हो गया, तो ऐसा घबराना नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। भाई हर चीज का उत्तर तो दादा के पास भी नहीं है, नहीं तो दादा का मंदिर ही बन जाता है ना। दादा भी एक आम आदमी है, आप ही लोगों के जैसा, तो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है दादा में। तो एक जैसे बहुत ऑर्डिनरी इंसान है वैभव दादा। तो इतना, अब गर्दन चटक गई तो बताइए, अब गर्दन चटक गई तो हम ये भी जाके देखें कि हमने गर्दन का व्यायाम इतने सालों में किया क्या कभी? हमने गर्दन को लेफ्ट पूरा राइट ऊपर नीचे घुमाया क्या? हमने कंप्रेशन दबाव खिंचाव डाला क्या? नहीं डाला। तो जो है उसका परिणाम एक छोटा सा झटका हमें आया है। कई बार हम टू व्हीलर पे जाते हैं, दचके अचके लग जाते हैं, गड्ढे हम कूद जाते हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं जर्क लग जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग जो है बहुत जरूरी है, सही तरीके से जो हम रोज करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो गड्ढे झटके इसको हम ओवरकम कर सकें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, हमको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, जिसमें हम खड़े हो जाएं दोनों पैर के बल, और जो है दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करने की कोशिश करें। या जो है थोड़ा सा बाबा रामदेव को देख लें, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि बहुत कॉमन कॉमन बातें वो स्ट्रेचिंग के लिए बताते हैं। तो उनका 8 बजे डेली आते हैं बाबा रामदेव इंडिया टीवी पे। तो जो है हम देखें या यूट्यूब पे जाके देखें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आपको ट्रेमेंडस लाभ देगा, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए बिल्ली है, कुत्ता है, आप देखते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, ये सर्कुलेशन ठीक होगा। और ब्लड को ठीक करने के लिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप तेल को जो है अ, इमली पानी हम बोलते हैं कि 15 दिन तो डेली लेना चाहिए, है ना। इमली पानी, ब्लैक कॉफी, जिससे हमारा ब्लड प्रॉपर पतला रहे। ये सभी को हम गाइड करते हैं हमेशा कि पहले 15 दिन तो लो, बाद में फिर 15 दिन छोड़ दो, जिससे जो भी कचरा गंदगी है वो निकल जाएगी। और थोड़ा व्यायाम, स्ट्रेचिंग, आगे पीटी हम स्कूलों करते थे थोड़ा बहुत, तो ये सब चीजों से हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। तो आप जो है मत डरिए, इतना कुछ नहीं होगा, हम है ना। नहीं सर, डरने की बात नहीं सर, जस्ट ऐसी कॉमन क्वेश्चन मन में आया, हाँ, क्योंकि रेगुलरली सब बीमारी के बारे में बात होती है, ये जो सडन अचानक चीजें होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग जानकारी। करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। थोड़ा सा यस व्यायाम जरूरी है, थोड़ा 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 हर सब कुछ जरूरी यस, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, संजीव ठाकुर जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। दादा मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे अभी आपने बताया गर्म पानी का, तो आपने बता दिया जैसे अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो लोग आगे है ना ये पूछते हैं कि इस कैंगन वाटर को अपन कितने टाइम तक फ्रिज में रख सकते हैं? क्या ठंडा पानी पी सकते हैं क्या? पी सकते हो। और आज बहुत अच्छा सेशन हुआ है ये, पानी गर्म करने के ऊपर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई लॉस नहीं होगा, 50 ऊपर से नहीं कर सकते ज्यादा। तो ये वाला दिनेश पीस जी खुद को म्यूट कर लें, आप अनम्यूट अनम्यूट हैं अभी। इसके निकाला। दिनेश जी, हाँ ठीक है।
तो आप किससे निकाला? जो है, एक मिनट दिनेश जी को मैं जरा बहुत म्यूट कर देता हूँ। म्यूट कर देता हूँ, ठीक। आपने पूछा है कि ठंडा करेंगे तो क्या होगा, है ना। पानी को अगर जी। ठंडा करेंगे आप तो उसका पीएच कम हो जाएगा। जब भी आप फ्रिज में किसी चीज को रखते हैं, बर्फ बनाएंगे तो पीएच बहुत कम हो जाएगा। और अगर नॉर्मल आप जहाँ पानी ठंडा करने की बोतल रखते हैं, तो वहाँ पीएच जो है वहाँ भी चेंज होगा। जब भी हम कैंगन पानी को ठंडा करेंगे तो उसका पीएच कम हो जाएगा हल्का सा। अगर बर्फ बनाएंगे तो बिल्कुल वो एसिडिक हो जाएगा, है ना। बहुत लो हो जाएगा। 9 पीएच का पानी 6 पीएच का हो जाएगा। इसीलिए जब हम चेहरे को हम धोना होता है तो हम बोलते हैं ब्यूटी वाटर का बर्फ जमाओ और फिर चेहरा धो। उससे चेहरे में बहुत ज्यादा कांति और ताजगी आ जाती। और अगर आप 9.5 को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो उसका भी पीएच कम होगा स्लाइटली। वो आप इलेक्ट्रिक पीएच मीटर से चेक कर सकते हो। और अगर आपने उसको डीप फ्रीजर में रख दिया तो वो भी पूरा 7 पीएच का हो जाएगा। 9 का सीधे 7 हो जाएगा। पीएच कम होता है जितना टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ओआरपी कम नहीं लेकिन होता। ओआरपी कम नहीं होता, ओआरपी उतना ही रहेगा। हाँ, नहीं ज्यादा, ये तो मुझे जानकारी थी कि इसका पीएच कम हो जाता है। जैसे अपन थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं तो पानी नॉर्मल हो जाए गर्म से, जैसे अभी गर्मियों में आता है तो थोड़ा सा मतलब ठंडा हाँ हो जाए, हाँ ऐसे रख हाँ, सकते हैं। रख सकते हो, रख सकते हो, क्यों नहीं। जी, रख ये सकते हो, सवाल है। घंटा 2 घंटा रख सकते हो आप, बिल्कुल। है ना। हमने अभी है। यहाँ जो वीडियो दिखाया वो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मटके में पानी खराब हो रहा है कैंगन का, है ना। कॉपर में जी। खराब हो रहा है, स्टेनलेस स्टील में खराब हो रहा है। वो सूचना दी गई है यहाँ। बाकी आपका जैसा मन करे वैसा करो आप, है ना। ठीक है। अब ये ब्यूटी वाटर को आप क्या जानना चाह रही हैं, पूजा जी। ब्यूटी वाटर का क्या पूछ रही हैं आप। ब्यूटी पानी कहाँ रख सकते हैं पूछ रही हैं आप, कहाँ। ब्यूटी वाटर को फ्रिज में रखेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। वो डीप फ्रीजर में रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। डीप फ्रीजर की, क्योंकि वो चेहरे पे लगाने के लिए है, तो जितना ज्यादा एसिडिक हो उतना अच्छा है ना। बहुत सारे लोग हैं, और कितना टाइम हो रहा है, 8:40 हो चुका है। फटाफट 2 मिनट अपनी बात रखें। विजेता टीम से तुमने एक ले लिया है। भुवन शर्मा जी अपनी बात रखिए, फिर डॉक्टर इशिकांत पंजे अपनी बात रखिए, फिर हाँ दादा, बोलिए। दादा प्रणाम। मैडम, कमलेश नाम से कोई इसमें है, आप उनको एक बार नोट कर देंगे। उनके साथ कोई बैठा हुआ है, कैंसर पेशेंट है, 2 मिनट बात करना चाह रहे थे। कमलेश नाम से तो कोई आ नहीं रहा है इसमें। चले गए होंगे शायद, लेफ्ट बैठे थे। कोई बात ओके। नहीं। हम्म। ठीक है दादा। हाँ, इशिकांत पंजे जी अनम्यूट करें। वेरी गुड मॉर्निंग दादा सर। गुड आपसे मॉर्निंग मुलाकात सर। करके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बेसिकली सर मैं 2 साल से यूजर हूँ, और अभी मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, डेली मेरे टू 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 थ्री थ्री प्रेजेंटेशन चल रहे हैं। और मैं जिस मुसीबत से अभी जूझ रहा हूँ वो है कि अभी लोग मेरे पास खुद अप्रोच कर रहे हैं, और अब बीमारी लेके अप्रोच कर रहे हैं। तो मुझे आपकी बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली क्या कैंसर पेशेंट्स, किडनी फेल पेशेंट्स, क्रिएटिन कम नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से पेशेंट मेरे पास खुद से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में। और वहां पे वो खुद आ रहे हैं दूर दूर से, कि ओके। उनका कहना यह है कि हम पैसे भरने के लिए तैयार है। आप हमें शाश्वती दे कि हम इससे दूर चले जाए, हमारा डायलिसिस रुक जाए, हमारा हम्म। केमो रेडिएशन रुक जाए, यहाँ तक कि उनका ये आ रहा है। और बेसिकली मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ, और विजय पाटिल सर जो है उनके टीम से मैं काम करता हूँ। ओके। और बहुत ही बेहतरीन मुझे डायरेक्शन उनके थ्रू मिल रही है। मेरा खुद का फिशर का रिजल्ट मतलब पूरा 0 हो चुका है। मुझे वो प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो गया। ओके। सही है। तो अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर सीआईडी क्राइम ब्रांच में थे, रिटायर हो गए हैं। किडनी फेल पेशेंट है, उनके पास डिवाइस बिठाया है, और उनको भी हमने वो पानी स्टार्ट किया है। तो हम्म। आपका डायरेक्शन मेरे लिए और मेरे आने वाले सभी मरीजों के लिए बहुत बेहतर रहेगा सर, आपका गाइडेंस। इसी के लिए हमने एक्चुअली हेल्दी वेल्दी भारत ग्रुप बनाया है। और उसमें हमने बहुत सारे रिकॉर्डेड ऑडियोज डाले हुए हैं। और उसका हमने जी। एक मेंबरशिप फीस 5,000 रुपीज रखा है, जिसमें जी। किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, कैंसर, उस पर बहुत सारे हमारे जो प्रयोग हैं वो हमने शेयर किए हैं। जो ओके। कैंसर में अम्लीख खाना चाहिए, किडनी का दुश्मन कौन है,
क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, और ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आज भी हम उसको बहुत सारा अपडेट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब उसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको सारे ऑडियोज वो मिल जाएंगे, किडनी, गॉल ब्लैडर, शुगर, डायबिटीज, प्रोटोकॉल्स, क्या खाना, कैसे खाना, इमली पानी का प्रयोग, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो क्या करें, है ना। कैंसर में तो मैंने जैसे बार बार बोला है, अगर आप रोज जूम में आते हैं तो कि हर 10-15 दिन में डाइट चेंज करना पड़ती है, उसमें बहुत सारे मिरेकल रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब हर हर बीमारी में ही कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है रिजल्ट। और ऐसी ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टरों ने बोला कि यार ये तो नहीं होगा अब सॉल्व, उसमें भी जो है पानी ने अपने चमत्कार दिखाए हैं, भोजन पद्धति ने अपना चमत्कार दिखाया है। तो जब भी आपको समय मिले आप उसको ज्वाइन करें। उसको जो है विजय पाटिल जी को मैं भेज दूंगा स्कैनर। और जो है ये जो किडनी पेशेंट है, किडनी का दुश्मन है दूध, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, आपका चिकनाई, आपका तेल। किडनी को ये बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किडनी के लिए, है ना। आप देखो कोई भी जानवर का किडनी फेल नहीं होता क्योंकि वो तेल नहीं खाता, है ना। दूध नहीं पीता जानवर, जब माँ, जो भी जानवर हो अपनी माँ का दूध ही पीता है, उसके बाद उस दूध को छोड़ देता है। तो किडनी खराब कब होती है, जब हम अत्यधिक बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो किडनी का तो काम ही है कि एसिड निकालना, इसलिए ईश्वर ने 2 किडनी बनाई है, सभी को 2 किडनी दी जाती है। और तीसरी किडनी हमारी स्किन होती है। तो अब अगर किडनी मेरी फेल हो रही है तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किडनी का पसंद कौन है। किडनी का दुश्मन तो हमने बता दिया, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट, तेल, घी, चिकनाई, ये किडनी के दुश्मन है। अब पानी कौन सा पी रहे हैं, पानी भी देखना पड़ेगा। कुछ लोग बोरिंग का पानी पीते हैं 800-800 900 TDS का, उससे भी किडनी खराब हो जाती है। वो पानी में बहुत सारा हार्डनेस होता है, वो सब बॉडी में जाता है, जमता है, निकल नहीं पाता। तो पानी भी किडनी का दुश्मन है। अगर क्योंकि हमारे सेल का TDS कितना है, 200। तो अगर हम पानी पी रहे हैं 500, 700, 800, 1000, तो वो भी किडनी को तकलीफ देगा, क्योंकि इतना वो पाताल का पानी पाताल के लोगों के लिए है। हम ऊपर रहते हैं पृथ्वी पे, हमारे लिए नहीं है वो पानी। हम उस पानी को बोरिंग कर करके निकाल के पी रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पानी है, मीठा है, ये है, वो है। लेकिन उस पानी में क्या है, उस पानी में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे काम के ही नहीं है। पानी में 2 तरह की हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस जो है उसमें, इसीलिए जब आप बोरिंग का पानी गर्म करते हैं तो उसको ऊपर से व्हाइट 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 जम जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसलिए RO आया कि भैया जिसको जहां नदी का पानी मौजूद नहीं है RO लगाओ बोरिंग के पानी को। तो RO आया तो RO ने सभी निकाल दिया पानी को हल्का करने के चक्कर में। तो वो पानी फिर डेड वाटर की तरह, हंग्री वाटर की तरह हो गया। तो अब इसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो दूध, दही, तेल ये बंद किया जाए। उसके बाद मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज, पनीर, ये सब चीजें बंद की जाएं। तो अब किडनी का दोस्त कौन है, दुश्मन तो हमने बता दिया, पानी भी कौन सा दोस्त है कौन सा दुश्मन है ये बता दिया। अब पानी, अब इसका दोस्त कौन है, तो जितनी भी पीली चीजें हैं, येलो चीजें, येलो शिमला मिर्च, येलो पाइनएप्पल, पपीता, येलो आपका येलो पम्पकिन, तो ये जो है सब किडनी के दोस्त हैं। वो पत्तियां, तो ये जो चीजें हैं ये किडनी को रिज्यूनेट करती हैं, ये हल्की होती हैं, किडनी को ठीक करती हैं। तो हमने जब भी किडनी पेशेंट्स को व्हीट ग्रास पाउडर दिया जिसमें 96 पोषक तत्व हैं, और कैंगन पानी में उन्होंने घोल के पिया, वो लोग ठीक होने लगे। सिकुड़ी हुई किडनियां तो व्हीट ग्रास पाउडर और कैंगन से ठीक हुई। बाकी परहेज तो आपको बता ही दिए हैं। आपको समझ में आ रहे हैं ना परहेज, दुश्मन बिल्कुल मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन दुश्मन मतलब मतलब परहेज, हाँ हाँ। है ना। तो अब किडनी अब फेल ही हो गई। अब फेल हो गई तो गेहूं के ज्वारे का पाउडर रोज हमें लेना पड़ेगा, जिसको हम व्हीट ग्रास पाउडर बोलते हैं। वो भी महाराष्ट्र की कंपनी बनाती है, चंद्रकांत गिरमे साहब की, सबसे अच्छा बनाती है। उसको आप खरीद लो, उसको 1 ग्राम रोज पेशेंट को दो। अब वो खाएगा तो उसको आपका कच्चा खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन जब भी वो पीली चीजें कच्ची खाएगा, पपीता, उसे पपीता ही खाए रोज आधा किलो पपीता। उसके बाद भूख लगे तो येलो पंपकिन और धनिया का जूस ले ले, धनिया पत्ता जरा सा डाले, 20 ग्राम बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। और पंपकिन ले ले 100 ग्राम्स। और वो इस प्रकार की डाइट जब लेगा, पाइनएप्पल लेगा, अगर जो है पाइनएप्पल बॉईल करे और उसको ले ले। तो ये जो पीली शिमला मिर्च, इसका सलाद, तो जो ऐसा करेगा। उसके बाद मिलेट्स जो है अनाज में, लिटिल मिलेट जो होती है वो किडनी को ठीक करती है। तो तेल बंद कर दे, दूध, दही, छाछ बंद कर दे, पनीर बंद कर दे, नॉनवेज बंद कर दे, प्रोटीन बंद कर दे। और हमारा 2.5 pH का पानी जो है जरूर पिए। वो कितना, 1 वाटी भर के। तो वो पानी क्या करेगा, वो क्रेटिनिन को कम करता है। और 2.5 pH का एसिडिक टू वाटर देना पॉइंट है। फाइव हाँ, वो जो है वो क्रेटिनिन को कम करता है। तो अगर उसकी बॉडी में कहीं दाल वाल ये सब पच नहीं रही है, क्योंकि हर चीज में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन तो है ना। दाल में तो हंड्रेड बहुत परसेंट ज्यादा है, पनीर में बहुत ज्यादा है ना, हंड्रेड इसमें बहुत परसेंट ज्यादा है, लेकिन पत्तियों में भी प्रोटीन है। तो वो कैसे पचेगा, तो 2.5 pH का पानी बीच में 1-2 वाटी पी ले।
तो ऐसा करने से 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में देखते हैं किडनी 15-16 दिन में परिणाम छोड़ने लगती है। तो हो सकता है अच्छा अच्छा होने लगे, क्रेटिनिन डाउन हो जाए। तो ये सब होता है जब हम करते हैं। अगर पानी का उपयोग पता है तो पानी भी आपको बता दिया, 10 बार बॉईल करिए, स्टील का बर्तन लीजिए, पानी रखिए, उसको बॉईल करो, ठंडा करो, बॉईल करो, ठंडा करो, बॉईल करो, ठंडा करो, और उसके बाद उस पानी से कैंगन बनाओ और वो उसको दो। तो सारी वो जो चीजें खा रहा है वो मेडिसिन बन जाएगी और वो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? जी दादा, मन से धन्यवाद आपका। और थैंक यू। बहुत जोर से काम शुरू किया गया है सर, धन्यवाद आपका। हाँ, काम जोरदार करना है। जी बिल्कुल। ठीक। हाँ दीप्ति मई साहू जी अनम्यूट करें। नमस्ते दादा। नमस्ते। हाँ दादा, ये 8-10 दिन पहले हम एक जने के घर में मशीन लगाए थे उड़ीसा में। तो जब वो स्टार्टिंग में पानी पिए, उनके वाइफ थोड़ा, उनका तबीयत अच्छा नहीं था, मतलब तबीयत अच्छा नहीं, क्या पहले से भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम था। तो इसलिए वो पानी क्या अच्छे से हजम हो जाएगा क्या की सोच के 9.5 9 पीएच से शुरू कर दिए थे। और एक दिन में 6-7 लीटर 8 लीटर तक भी पानी पी रहे थे। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड को हो गया, थोड़ा सर्दी हो गया, इनको भी सर्दी हो गया। लेकिन उनके वाइफ को इतना ज्यादा सर्दी हो गया कि वो 1500-2000 का मेडिसिन भी लग गया, पैसा का तो छोड़िए, मेन हुआ उनको थायराइड और एस्टनपुलिया भी निकल गया बोल को सोच रहे। तो कल फोन करे थे, बोल रहे कि कैसा क्या करेंगे, पानी पियेंगे कि नहीं पियेंगे, ऐसा बोल को बातें कर रहे थे, क्या करेंगे सर। अब देखिए, जब भी हम अल्कलाइन पानी पीते हैं, हाइड्रोजन रिच पानी पीते हैं, तो हाइड्रोजन रिच पानी क्या करता है, सूरज की ताकत जब पानी में आएगी तो पानी क्लीनिंग चालू करेगा। पानी जब अल्कलाइन हो जाएगा, उसका एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अल्कलाइन पानी क्या करेगा, क्लीन करेगा। तो पानी जब क्लीन करता है तो शरीर में अगर जमा कफ है तो वो एक जगह वो कफ इकट्ठा करने लगेगा। कफ उसको होगा, सर्दी होगी, पर ये सारे इफेक्ट 20 दिन बाद गायब हो जाते हैं। ये कंपनी की पब्लिश किताब में भी लिखा है कि ये जो भी होगा इफेक्ट, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, उसने लिया कॉन्स्टिपेशन कम हो जाए, इसलिए उसने कैंगन पानी खरीदा, और उसका उल्टा हो गया, उसका बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं मैंगन इफेक्ट। तो ये जब उल्टा होता है, लेकिन कैंगन पानी से कभी बीमारी इसलिए नहीं होगी कि वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का इस पर सील लगा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा पानी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो पानी को 23-24 पैरामीटर पे चेक करता है और उसके बाद सर्टिफाई करता है कि इस पानी से कभी भी आपको हार्मलेस पानी है, जो इस मशीन से होकर गुजरेगा वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। जैसे किसी को कोई बोलेगा इस पानी को पीने से तो मेरा शुगर बढ़ गया, तो शुगर कैसे बढ़ेगा, पानी में तो 0 कैलोरीज है, पानी में कैलोरी ही नहीं है। तो ये एक्चुअली बड़ा हमारे दिमाग में कुछ कुछ आता है, कई बार क्या नहीं कुछ ना नहीं कुछ। सर, उनके उनके दिमाग में तो आ रहा है, लेकिन हम भी उनको यही समझाए कि पानी पीने के बाद यही सब होता। लेकिन हाँ, बात ये है कि सर अभी उनको फिर से 7 पीएच से शुरू करेंगे अब या 7 पीएच का पानी जो है वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम का नहीं आयनाइजेशन है। नहीं हाँ। होता है 7 हम्म। में। तो भाई फिर तो उनका वही पानी अच्छा था, मटके का, हंडे का, आरओ का, जो पी रहे थे। तो 7 पीएच का पानी जो है, इट इज नॉट आयोनाइज। आयोनाइज पानी पूरा दुनिया पी रहा है, 1500 से ज्यादा रिसर्च पेपर मौजूद है। अब उनको अगर कफ हो रहा है ना, तो सिंपल उनकी डाइट को ठीक करिए। हो सकता है उनकी बॉडी में क्या जा रहा है, आई डोंट नो, नॉनवेज कितना जा रहा है, दूध दही कितना जा रहा है, क्योंकि उड़ीसा है तो वहां तो आदमी नॉनवेज खाता ही है ना। अब जो है कैसे क्या वो हो रहा है, तो सिंपल हम बोलते हैं कि अगर कफ हो रहा है तो चना खाना स्टार्ट कर दें, काबुली चना या वाइट चना जो होता है उसको। एक होता है अपना देशी चना जो कफ को ठीक करता है, तो देशी चना 9.5 में डिप करो, रात को वो फूल जाएगा, उसको 2 बार खाओ। काबुली चना जो है वो, उसको बॉईल करके उसको खाओ, तो 2-3 सर्विंग जब चने की चलेगी, देशी चना कच्चा और काबुली चना बॉईल करके, उसमें बारीक कटा प्याज, ये सारी चीजें जो है। उसके बाद कफ को कम करता है आपका। कड़वे रस की कमी से भी सर्दी होती है ना। तो कड़वा रस किस में है? करेले में है। तो हम बोलते हैं करेले का जूस जो है डेली एम्प्टी स्टमक लेना चालू करो। 2 छोटा करेला, उसका 9.5 में डिप करो, 40 मिनट्स के बाद उसका बीज निकालो और उसका जूस बना के पी लो। उसमें थोड़ा लेमन डाल दो, थोड़ा सॉल्ट डाल दो। तो ये 2 काम करने से निश्चित तौर पर कफ कम हो जाता है। लेकिन कैंगन वाटर पीने से इनिशियली कफ होता ही है, हर किसी को नहीं, लेकिन बहुत लोगों को होता है, लेकिन वो चला जाता है। वो ऑटोमेटिक बॉडी धीरे धीरे
निकालेगी, लेकिन क्या अब कस्टमर तेल भी खा रहा है, सब चीजें कर रहा है, तो वो एकदम घबरा जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मैंने पानी बदला और जो है मेरे को तो कफ हो गया, कभी नहीं होता था, कैसे हो गया? नहीं, कफ वो सब जमा हुआ था वो, अब वो जो पानी निकाल रहा है उसको, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि ये पानी पीने के बाद एकदम से लोग चाय पी लेते हैं, कोई दही खा लेता है, भाई इस पानी को पीने के बाद जो है धीरे धीरे इसको पानी को पिए। पानी पीने का प्रोसीजर भी बताया है, ये सब चीज बताना चाहिए कि पानी कैसे पिया जाता है। पानी घूंट घूंट करके पिया जाता है, 1 घंटे में जो है 1.25 घंटे में 1.25 लीटर, ये तरीका होता है। या आप समझो एक साथ ही पूरा पानी पी गए, तो थोड़ा सा पानी को आधा घंटा काम करने दो, एक बार निकल जाने दो उसको, उसी के ऊपर हमने चाय पी ली, कॉफी पी ली, ये कर लिया, ये सब अगर हम करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट भी ऐसे ही अलग अलग आते हैं। कभी थायराइड हो गया तो ये हो गया। अब थायराइड हो रहा है मतलब क्या, सबसे पहले इंसान को कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद उसको थायराइड होगा। ऐसे थायराइड उसको नहीं होगा, कभी नहीं होगा थायराइड। पहले कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेट होगा, पेट साफ नहीं होगा, उससे पूरा सर्किट खराब होगा, यहाँ पर जो सर्किट है वो खराब होगा, उसका जो विशुद्धि चक्र खराब होगा, उसको डॉक्टर बोलेगा थायराइड हो गया। तो विशुद्धि चक्र खराब क्यों हुआ? क्योंकि अच्छा पानी नहीं जा रहा था, डिहाइड्रेटेड था, कॉन्स्टिपेट हुआ, वो फाइबर नहीं खा रहा था। तो ये सारी चीजें थी। हाइड्रोजन बॉडी में 55% है, उसका निर्माण नहीं हो रहा था, अचानक हाइड्रोजन रिच वाटर बॉडी में चला गया, उथल पुथल मचाई, और उसको लगा कि अरे यार ये क्या करें। तो कैंगन वाटर पीते रहिए, बोलना कैंगन वाटर 9.5 पीते रहिए, शाम के बाद जो है 8.5 पीजिए, यही करते रहिए, कुछ नहीं होगा, है ना। 15-20 डेज के बाद हम उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, चना खाने के लिए बोल दूंगी, और ये चना जैसे भी चना पानी खाने के लिए पी। बोलिए, करेले के लिए बोलिए, ताकि हाँ। पानी को और सपोर्ट मिल जाए, है ना। और डेयरी प्रोडक्ट्स बोलना कुछ थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि पानी कफ निकाल रहा होगा, और आप डेयरी मत खाइए कुछ दिन के लिए। दूध, दही, छाछ, दही, मिष्ठी, ये वो संदेश वंदेश जो भी खाया जाता है, मतलब प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करिए, है ना। ठीक उसके है बाद दादा, रिव्यू नमस्ते। करेंगे। ठीक है सर। हाँ। हाँ, युवती मिश्रा जी अनम्यूट करें। दादा नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर। एक छोटा सा डाउट है टेक्निकली। जो हम 11.5 देते हैं ऑयल को इमल्सिफाई करने के लिए, फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें टीडीएस का क्या रोल है कि वो कम होने से इमल्सिफाई बेटर होता है और ये होता है, उसका थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल पाएगा क्या? ये मेरा कंफ्यूजन है, आपसे ये मिल पाएगा कि नहीं, क्या जितना रोल है? देखिए, पानी अगर भारी होगा ना, तो ऑलरेडी 11.5 बनाने के लिए हमको हम नमक का यूज करते हैं, है ना। नमक में हम सोडियम का यूज करते हैं, सिर्फ क्लोराइड तो नीचे से निकल जाता है। तो ठीक है। इमल्सिफिकेशन कैसे होता है? जब वैक्यूम क्रिएट होता है तब इमल्सिफिकेशन होता है। जैसे मेरी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो गया, तेल है, तो मैं अगर हवा छोड़ दूंगा मुंह से और हवा नहीं लूंगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, इसी को बोला गया है बाह्य कुंभक। तो आप जो है जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं तब जाके ऑयल फटता है, नहीं तो नहीं फटता ऑयल। तो इसको जो है कहीं भी ऑयल नहीं फटेगा, ऑयल में आप पानी डालेंगे तो नहीं फटेगा। तो ये एक वैक्यूम, ये जो क्रिएट किया जाता है, ये जो 11.5 का पानी है ना, पूरा पंप पंप लगा हुआ है, नमक सक करता है, और उसके जो पानी के साथ क्रिया करता है पूरा, तो उसका पीएच बढ़ता है। इसमें अगर मोटा पानी है, मतलब मोटा पानी मतलब पानी में अमोनिया है, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, हार्डनेस बहुत ज्यादा है, तो वो पानी जो है, ये वैक्यूम जो क्रिएट होगा, जो वैक्यूम पंप मशीन के अंदर लगा हुआ है, तो वो वैक्यूम ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मेटल्स अगर हैवी हैं तो दिक्कत देंगे। इसीलिए जो इनका जो NaCl सॉल्यूशन होता है वो भी मेडिकल ग्रेड का होता है ना। जो लोग तो टाटा नमक से या किसी से भी बना देते हैं, तो हम हमेशा मना करते हैं कि मेडिकल ग्रेड का सॉल्ट यूज करो जिसमें जीरो इम्प्योरिटी हो। अगर आपको एनहेंसर खुद बनाना है तो हम खुद भी एनहेंसर बना सकते हैं, अगर हमको कॉस्टली नहीं लेना है तो हम किनले या एक्वाफिना का पानी लें जो 4 या 5 TDS का है। 1 लीटर पानी में 153 ग्राम हम मेडिकल नमक डाल दें, सोडियम रैनबैक्सी अच्छी कंपनी का जो आता है, और उसको 6-7 बार छान लें, तो हमारा एनहेंसर घर पे ही बन जाता है। अब पानी में अगर 150-60 इतना TDS अगर है, तो न जाने उसमें कौन कौन से हार्डनेस हैं, उसमें कार्बोनेट्स हैं, उसमें सल्फेट्स हैं, उसमें बाइकार्बोनेट्स हैं, क्या क्या है। तो ये जो है उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे, वो उतना मजबूत नहीं बनेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो है 50-60 TDS का पानी ले लो, तो जितना कम TDS होगा उतना पानी हल्का होगा, तो हल्का पानी सपोर्ट करेगा जब वैक्यूम क्रिएट होगा। क्योंकि बिना वैक्यूम क्रिएट करे जो है नहीं हो सकता, ऑयल को तोड़ा नहीं जा सकता।
तो वही कुछ सिस्टम इस मशीन के अंदर भी लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा है जो एनहेंसर के लिए वो सोडियम क्लोराइड सक करता है और धीरे धीरे वो एनहेंसर कम होता जाता है ना। तो अगर आप उसको मोटा पानी देंगे, बोरिंग का पानी देंगे, तो ये हर चीज की देखिए एक लिमिट है ना। जैसे जो है मेरी भी लिमिट है, मैं जब कल 7 से 10 बजे तक बोला, उसके बाद फिर लोगों के फोन आने लगे तो मेरा सिर ही दुखने लगा, क्योंकि मेरा एक लिमिट है। तो अगर मैं ऐसा बात ही करता रहूंगा 12 12 1 1 बजे तक, तो हो सकता है मैं एक दिन पागल हो जाऊं। तो हर चीज ऐसा का नहीं है। लिमिट होता है ना। तो पानी जो है 150 200 300 TDS का अगर देंगे तो मशीन का लिमिट नहीं है, जो पतला पतला प्लेट उसमें जो लगा हुआ है, तो इसलिए। और मेरे सेल का भी TDS कितना होना चाहिए, 200। तो इसके ऊपर मुझे नहीं कुछ भी चीज डालना चाहिए, है ना। तो 200 तो जो खारा खारा पानी जो होता है वो मोटा होता है, मतलब वो नहीं देना खारे है। खारे पानी समुद्र का TDS 6600 होता हाँ समझ गया। है ना। जो व्हाइट तो वाला डिपॉजिट होता है नॉर्मल पानी गर्म करने से। इसीलिए वो पिया नहीं जाता। तो ठीक है। अब अगर मैं इसको 150 TDS का पानी दूंगा और सोचूंगा कि 11:30 बन जाए, तो फिर मैंने स्पीड भी बढ़ा रखी है। तो बहुत सारा डिपेंड करता है। पानी मशीन को धीरे धीरे देना है। 50 60 TDS का पानी देंगे तो अच्छा निकलता। पानी हर जगह का अलग अलग है। उड़ीसा हाँ का पानी अलग है, गंगा जल अलग है, हमारा नर्मदा अलग है। तो हर जगह अलग अलग पानी है। तो इसलिए उसका मेन सॉल्यूशन ये है कि आप एक तो मेडिकल ग्रेड नमक से एनहेंसर बनाएं, जैसा मैंने बताया, है ना। जनरली तो हम डिस्टिल वाटर ही बोलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं डिस्टिल वाटर महंगा आता है, 350 400 का 5 लीटर आता है। तो चलो भाई, आप एक्वाफीना ले लो, उसका TDS भी बहुत कम है। एक्वाफीना का TDS बहुत कम होता है, 4 5 TDS का पानी होता डिस्टिल है। वाटर और बेटर है। हाँ, डिस्टिल वाटर और बेटर, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है, उसका TDS 0 है, तो हाँ वो और बेटर है कि ओके। लेकिन हम लोग अगर बनाएंगे तो वो जो सॉल्ट का क्वालिटी अगर बेटर नहीं रहेगा कुछ भी, तो उसमें प्लेट का भी इफेक्ट होगा ना दादा, क्योंकि प्लेट वो लोग खराब। तो पूरा उनका मशीन के लिए ही बनाते हैं कि ना प्रॉब्लम कुछ भी ना हो। देखो, वो सॉल्यूशन जो है वो लोग बहुत प्योर तरीके से जापान में बना रहे हैं। अब हम्म, साइट्रिक एसिड जो मशीन साफ करने का जापान से आता है, वो किसका बनता है, एप्पल का। भारत में जो साइट्रिक एसिड बनता है वो बनता है नींबू का। हमारे यहाँ नींबू सस्ता है, वहाँ एप्पल सस्ता है, तो वो लोग एप्पल से बनाते हैं। तो मशीन जो साफ होती है, और वो एप्पल वाले उनका एप्पल वाला है, और हम्म, हम जो बाजार से खरीदते हैं वो साइट्रिक एसिड हमारा नींबू वाला है। तो हम्म, जो जापान में जो सस्ता होगा वो उस हिसाब से करेगा उस चीज को। अब उनका एनहेंसर है, तो एनहेंसर हम अगर अच्छा मेडिकल ग्रेड का नमक लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे, तो हमारा एनहेंसर भी काफी अच्छा बनेगा, है कि नहीं। ओके। फिर उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, जो नगर हाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरोना में छीट रहा था, तो वो भी उसमें 1 2 बूंद डालना पड़ता है, तब जाके अच्छा वो जो है, मतलब अगर 1 लीटर एक्वाफीना का पानी लिया मैंने, उसमें अच्छा। 153 ग्राम नमक डाला, वो सॉल्यूशन बनने के बाद उसको छान लें, और उसमें 4 5 बूंद सोडियम हाइपोक्लोराइड आप डालेंगे, तो काफी अच्छा एनहेंसर बन जाता है आपका। और उससे ऑयल फटेगा। ऑयल भी रोज रोज नहीं फटता है, कई बार कंपनी के एनहेंसर से भी तेल नहीं फटता है। समझ सोचिए हाँ कि जो है यही हो उसका रहा भी रीजन है कि पानी वेरी करता है। अभी अच्छा सीजन है, अभी सेटल्ड है, अभी TDS कम है, अभी बहुत अच्छा बनेगा 11:30। लेकिन यही आप बरसात में बनाओगे तो नहीं है, बनेगा। बारिश में बढ़ हाँ, जाता है। बारिश में नहीं बनेगा प्रॉपर पानी साढ़े बढ़ ग्यारह जाता है। हाँ, हम्म, क्योंकि बारिश में TDS बढ़ जाता है, मट्टी पानी में आ जाती है, मिनरल्स पानी में आ जाते हैं, वही। है ना। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू, ओके। हाँ, त्यागी सर अनम्यूट करें। सुरेंद्र सर अनम्यूट करें। सुरेंद्र सर सुन पा रहे हैं क्या? आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तुपू सामंता जी खुद को अनम्यूट करें। सुरेंद्र जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। हाँ, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, एक 50 एज का आदमी है, उसका घर में कैनगन वाटर मशीन बिठाया है, लेकिन हाँ, उसका यूरिन का बहुत प्रॉब्लम होती है, और यूरिन बहुत तो नहीं रख पाती है, मैंने जल्दी जाना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करना है? देखो, इसके लिए मैं मेरा एक वीडियो आपको यहाँ प्ले कर देता हूँ। ये हमने बताया भी हुआ है कि कुछ पॉइंट अगर हम दबाएंगे प्रॉपरली, तो जो है, मेरा चैनल पे आप अगर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आप शायद नहीं गए होंगे। तो जो चैनल जो है मेरा, उस पे वो वीडियो हमने डाला हुआ है।
यूरिन के लिए हाथ में पॉइंट होते हैं मर्म के, अगर वो प्रॉपर दबाए जाएंगे तो 100% जो है इन्फेक्शन भी चला जाएगा। इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो जैसा मैंने बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस मछली अंडा, इससे दूर रहना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका काम उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। ये अगर वो लेते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, वो भेज ही खाते हैं, हम भेज ही खाते हैं। चीज ही खाते हैं लेकिन ऑयल खा रहे होंगे वो, तो ऑयल जो है बंद करवाइए। और क्रेन बेरीज जो होती हैं, क्रेन बेरीज भी आपको दिखा देंगे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाती है ड्राइड क्रेन बेरीज, उसको खाएं। जो है धनिया, उसका जूस लें, इमली पानी लें। सो ये सब अगर करेंगे ना तो लेकिन इंद्रवस्ती इमली मर्म का एक पानी वीडियो। पी रही है, इमली पानी एक दिन पिया था लेकिन उसका सूट नहीं हो रही है, क्या करे उसके वजह से? किसको अब किसको नहीं कर सकते कुछ भी, हो रहा है तो भी एज मेडिसिन उनको लेना पड़ेगा। इमली की क्वांटिटी कम कर दीजिए, अगर एक इमली ले रहे हैं तो आधा कर दीजिए, अगर सूट नहीं हो रहा है तो। हाँ, और ये मर्म जो इसका जो वीडियो है, इसको आप देखिए, ये वीडियो उनको आप फॉरवर्ड मेरे चैनल पे जाके फॉरवर्ड कर दीजिए, वैभव दादा ऑफिशियल पे ये वीडियो है। इससे किडनी ठीक होता है आपका, इससे क्रेटिनिन ठीक होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मध्य भारत के मर्म विशेषज्ञ श्री वैभव साठे जी से हम जानेंगे मर्म चिकित्सा के बारे में। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म की जानकारी दूंगा, और इसके मैंने इतने अच्छे रिजल्ट लिए हैं पुरुषों में, महिलाओं में। अब इस मर्म का नाम है इंद्रवस्ती मर्म। ये हाथों में भी होता है, पैरों में भी होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ हाथों का जो मर्म है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये इंद्रवस्ती मर्म को लोकेट कैसे करते हैं, तो ये मेरा हाथ हो गया पुष्पा जी, है ना। तो ये मेरा जो हाथ है, अब ये जो मेरी क्रीज जो आप देख रहे हैं ना, क्रीज, ये सभी के हाथों में से क्रीज बनी रहती है। तो ये मेरा उल्टा हाथ है। स्त्रियों का इंद्रवस्ती हमेशा पहले लेफ्ट हैंड का करते हैं, फिर राइट हैंड का करते हैं, और जेंट्स में राइट फिर लेफ्ट। तो इंद्रवस्ती मर्म करने के लिए मैंने हाथ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा भी रख सकते हैं, जैसा करना है, फोल्ड करना है ऐसा, फिर फोल्ड करके भी रख लिया। यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिया 4 उंगल और 4 उंगल पलटा दिया, ये होगा 8 उंगल। तो ये मेरे 4 उंगल से मैं मेरा कर रहा हूँ 8 उंगल। अब समझो मुझे आपका मर्म करना है, तो आपके जो ये 4 उंगल है जिससे मुझे मेजर करना पड़ेगा, वो जो 4 उंगल है वो ही एक्चुअल नाप माना जाएगा। मेरे 4 उंगल से आपका करूंगा तो गलत हो सकता है, तो है ना, पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके 4 और मेरे 4 मैच हो रहे हैं क्या। तो ये 4 उंगल का माप है। तो जिसका भी मर्म करना है उसके 4 उंगल देखे जाएं, 4 और ये 4 8, ये हो गए 8। अब ये यहाँ पर जो है पॉइंट आ गया, इसको अपन लोकेट करते हैं। तो ये 4 और ये 4 8, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ये है आपका इंद्रवस्ती मर्म 4 4 8। इसको ऐसे हाथ हम करेंगे, है ना, ये हाथ जो सपोर्ट में चला गया, इसको प्रेस करेंगे। हाथों, आप अंगूठे का डायरेक्शन देख लो कैसा है ये, है ना। तो ऐसे इसको हम प्रेस करेंगे। ये 1 मिनट में 20 बार प्रेस करेंगे अधिकतम, और ऐसा हम सुबह दोपहर शाम करेंगे। अब इससे होगा क्या जी, अगर समझो कोई महिला इसको प्रेस करती है, ये एक्चुअली ब्लड और आपका पानी, इन दोनों लिक्विड्स पे काम करता है। तो क्योंकि आपके शरीर में जो है 70% पानी है, ब्रेन में 90% पानी है, और ब्लड में 85% पानी है, तो उसको सुचारू रूप से जो है वो चले। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें कि आपका जो है ये पीरियड्स, जो महिलाओं को जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, वो अगर इसको 20 बार दबाएंगी 1 मिनट में, है ना, दबाते जाना है 1 2 3 4 5 6, और ऐसा करती रहे 2 बार 3 बार। तो जिन महिलाओं को 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आए हैं, उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। तो ये बांझपन में ये मर्म बड़ा उपयोगी है। ये इंद्रवस्ती नाम है, मतलब ये पानी से रिलेटेड मर्म है। तो इसका जो है ये पथरी हो रही है आपको, इसके बाद आपको जो है यूरिन हो रही है, जैसे आप बाथरूम तक जा रहे हैं, यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे, बुजुर्ग लोग जनरली होल्ड नहीं कर पाते यूरिन, तो इन दैट केस जब हम ये इंद्रवस्ती करेंगे बुजुर्गों का, है ना, माताएं बहनें जब इसको करेंगी, तो कई बार हम खांसते हैं तो जो है नीचे से बाथरूम निकल जाती है, मतलब उस ऑर्गन कहीं ना कहीं खराबी हो गई है कि बिना हमारे चाहे वो लिक्विड निकल रहा है। तो ये वहाँ की टोनिंग करता है। तो ये दोनों हाथ 8 उंगल, ये 8 उंगल है ना, बिल्कुल इसको इधर या उधर नहीं करना है। ये पूरी जो लाइन जा रही है यहाँ से ना, ये देखिए पूरा जो ये आपका जो मिडिल फिंगर और इन दोनों फिंगर के बीच से जो ये लाइन जा रही है, यहाँ पर ये पूरा आपका इंद्रवस्ती मर्म है ये, है ना। तो इस मर्म को दबाने से पीसीओडी, आपका दूसरा जो मैंने बताया पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो बांझपन में उपयोगी है।
तो ये जो मर्म है, मतलब नाभि के नीचे की जितनी भी आपकी बीमारियां हैं उस पर ये मर्म काम करता है। ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये आपको जो है पेशाब में झाग आ रहा है, यूरिन संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपका क्रेटिनाइन बढ़ रहा है ना, तो ये इसको दबाने से वो सारे यूरिन पानी संबंधी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर आपको ये लाभ देता है। पानी और ब्लड को के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें ये इंद्रवस्ती मर्म जो है ये आपको लाभ देता है। कुछ लोग यहाँ से 4 उंगल भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आता है यहाँ से, जब हम इस एंगल से यहाँ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। मतलब इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है, तो इसके आसपास भी हम दबाते रहें तो जो है सभी का मर्म बिंदु कहीं आगे पीछे होता है। तो ये इंद्रवस्ती बड़े काम का है। पीरियड्स नॉर्मल कर देगा, आपकी यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, बेड वेटिंग करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। अगर इस मर्म को अगर हम दबाएंगे तो 100% कुछ ही दिनों में वो रात को पेशाब करना, बिस्तर में जो पेशाब, कई बार बड़े बड़े बच्चों को भी बड़ी बड़ी, जैसे अभी लड़कियों को भी पेशाब हो जाती है, लड़कों को पेशाब हो जाती है, 15-16 साल के हैं लेकिन बिस्तर में यूरिनेट करते हैं, उनके लिए ये इंद्रवस्ती मर्म जो है बड़े काम का है। महिलाएं लेफ्ट फिर राइट, जेंट्स राइट फिर लेफ्ट। थैंक यू सर। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो ये आपका पेशाब की प्रॉब्लम है, अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो कृपा करके दूध, दही, तेल इन चीज़ों से दूर रहिए। मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इमली पानी लीजिए। क्रेनबेरीज आप टाइप जो है लिख लीजिए, क्रेनबेरीज ड्राइड, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। इसको चबाते रहिए बार बार, और आपका ये जो जूसिंग करते रहिए, सलाद रोटी खाइए, और उससे ये आपका यूटीआई क्लियर हो जाएगा। लेकिन कृपा करके तेल, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, छाछ इनसे दूर रहिए। सुरेंद्र जी अनम्यूट करें आप, आपको अनम्यूट लास्ट टाइम भी किया था, आपका हैंड रेज है तो चलो। ये नहीं, अनीता मंडोई जी अनम्यूट। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दादा, प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही आ रही। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सिग्नल का इशू था। और एक बात बोल दूं दादा, मंदिर तो आपका पक्का बनेगा, ये तो निश्चित है। वो 100 साल बाद बने, 150 साल बाद। क्योंकि जब आदमी होता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू बाद में होती है जब वो चला जाता है। हमारे पास लोग होते हैं ना, अच्छे लोग, हम उनको समझ नहीं पाते उस समय जब प्रेजेंट होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ पहले भी हुआ है। दादा मेरा एक सवाल था कि मैंने भी काफी आपको हर बार सुनता हूँ, डिप्रेशन के लिए कुछ है क्या, जो हम कुछ कैंगन वाटर या कुछ डाइट उसमें कुछ ऐड थोड़ा बहुत तो है, जैसे वो हाँ, डिप्रेशन के लिए है। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होता है तो वो सनबाथ ले। 10 बजे से 12 बजे, 10 से 2 के बीच का जो सूरज होता है उसकी अगर हम सनबाथ लेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है, FIR, फार इंफ्रारेड, ये सारी किरणें हमें मिलती हैं। तो 10 बजे बाद सनबाथ ले, नाभि के नीचे पूरा जो है, अगर जेंट्स है तो प्रॉपर बरमूडा में ही बैठे, और अगर कोई महिला है तो वो साड़ी नाभि के नीचे पहन के सनबाथ ले। और दूसरा, केला जरूर खाए। केला खाने से मूड स्विंग होता है। मिर्ची डेली खाए हरी वाली, उसको खाने से 100% जो है ये आपका ठीक हो जाएगा। मूड जो है अच्छा होता है, डोपामाइन जो है वो रिलीज होता है, तो केला मूड को सुधारता है। तो अपनी डाइट में सुबह केला ले लिया, दोपहर के खाने में केला, रात के खाने में केला, और मिर्ची, ताजी मिर्ची की सब्जी। मिर्चियाँ बहुत सारी बाजार में मिलती हैं, बड़ी बड़ी मिर्चियाँ, तो उनकी सब्जी या मिर्ची का बेसन या मिर्ची का किसी भी प्रकार से मिर्ची का यूज अगर करे खाने में तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, है ना। सिर्फ केला दादा खाने से उसमें ना भी ये हो मतलब जाएगा। थोड़ा सा पेशेंट थोड़ा ना बहुत सीवियर पोजीशन में पहुंच गए हैं, महिला हैं, और मतलब उनके हस्बैंड अभी 3-4 महीने पहले खत्म हो गए हैं। और हम्म मतलब वो अभी कुछ जैसे कुछ जीने की इच्छा ही जैसे समाप्त हो जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो हम्म वाली स्थिति है। मैं ऐसा तो प्राणायाम वगैरह मुझे पता है, अनुलोम विलोम से भी ठीक होता है, लेकिन वो अभी हम्म करने की जैसे मन नहीं कर रहा हो ना, कुछ भी करने का मन ही नहीं है। तो हम्म। उसमें पानी पानी तो हम वही 9:30, मतलब वो थोड़ा फास्टिंग भी उसमें काम करेगा क्या? नहीं, ये मन जैसे खराब है तो मन खराब है तो शरीर भी खराब हो जाएगा। तो शरीर को पहले ठीक रखें तो उसके लिए केला जरूर खाएं। उनको रिक्वेस्ट करिए कि 2-3-4 केले खाते रहिए, ऑटोमेटिकली उनका मन स्वस्थ हो जाएगा। जब वो केला उतना, जब वो मिनरल बॉडी में चला जाएगा तो मन को डाइवर्ट कर देगा, है ना। तो केला जो है उसका बड़ा पूजा भी होता है। केले के झाड़ का तो ऐसे ही पूजा नहीं होता है। केला जो है उसमें बहुत सारी जो है आध्यात्मिक गुण भी हैं,
है ना। केला काम करता है, शांति करता है, वासनाओं को कंट्रोल करता है। केला जो है वो रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, एकमात्र फल है जो अनाज के साथ खा सकते हैं। तो केले का तो साउथ में तो आप जानती हैं केले को किस कदर पूजा जाता है। तो केला जो है, केले की जो अंदर की जो डंडी आती है, तना, उससे बड़े बड़े पत्थर शरीर के गल के निकल जाते हैं। गॉल ब्लैडर है, किडनी है, इसको हम बनाना स्टेम जूस बोलते हैं। तो केला बड़े काम का है। तो केला उनसे बोलना, जैसा भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, अब जो गया है वो तो आ नहीं सकता, लेकिन स्वयं को संभालिए और उसमें बनाना उनकी बहुत मदद करेगा। अगर वो 2-3 महीने बनाना खा लेगी तो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा हीलर है इस टाइप के केसेस में। लेकिन बनाना इसमें उनको शर्तिया लाभ देगा, तो बोलना बनाना खाना जारी रखें। और जो है मिर्ची, ये मिर्ची जो है वो भी मूड को स्विंग करती है, रेगुलेट करती है। एक खुशनुमा जो आपको जो फीलिंग देती है, वो ये दोनों चीजें देती हैं, केला और मिर्ची हरी। ठीक है। थैंक यू दादा। और हम सब सच में सौभाग्यशाली हैं, जैसे दिनेश जी बोले, आप इतना डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, कब ढूंढते हैं। हम हमेशा आप लोगों के साथ लगे रहते हैं। सच में दादा आपका तो अभिनंदन है, मतलब जवाब नहीं है। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अब बहुत सारे लोग बचे हैं, लेकिन अब क्या समय इतना नहीं है, 2-2 मिनट में बात कर पाएंगे तो भी 9:25 हो जाएगा। 9:20 पे हमको इस मीटिंग को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जब थोड़ा सा निकलना है अभी, पैकिंग करके बस में बैठना है। तो कल हम मुलाकात भी नहीं होगी हमारी, कल हम बस में रहेंगे। थोड़ा सा 1-1 मिनट में बात कर सकते हैं तो प्लीज करें। अनीता मंडलोई, हाँ बात करें। थोड़ा सा दादा क्वेश्चन। प्रणाम, चरण स्पर्श दादा। नमस्कार। दादा ये मेरे जो होठ है, ये यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों साइड कट लगे हुए हैं और करीबन 5-6 महीने हो गए। ये जा ही नहीं रहा। मैंने केंगन पानी का वो सब उपयोग कर के देख, वो कर रहा हूँ, फिर भी नहीं जा रहा। इसके लिए थोड़ा सा सर, एक आधा से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हमें डॉक्टरों की भी सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ओमेगा 3 की कमी से चमड़ी खराब होती है। तो ओमेगा 3 जो है जी। चारों बीजों में है, ओमेगा 3 अखरोट में है। अखरोट मुट्ठी भर लीजिए, उसको गलाइए रात को, और अखरोट गिरी खाइए, एप्पल अनार का नाश्ता करिए, एलोवेरा आंवला गिलोय, इन तीनों जूसों का नित्य सुबह सेवन करिए 20-20 ml। उसके बाद आप अनार और एप्पल, 2 अनार और 2 एप्पल, उसका इमीडिएट नाश्ता करिए, और भीगे हुए अखरोट इसको खाइए। दोपहर के भोजन में आपका चारों बीज खाइए जो हम बताते हैं। आपको याद है क्या बीज? क्योंकि समय कम है, अभी बीज का जी जी, फोटो तो याद नहीं है, दिखा याद है, पाएंगे, है ना, याद है भी। समय नहीं ठीक है है, इतना। तो ठीक चारों बीज रात को गलाइए, सुबह खाइए, और ठीक। चने की सब्जी, रोटी, भात, इस प्रकार से खाना रखिए। और चारों बीज से आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा, अखरोट से ओमेगा 3 मिल जाएगा। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जो अच्छा लगे उस कंपनी का ले लीजिए, जो आपकी लोकल हो। आप महाराष्ट्र के हैं क्या? कहाँ के हैं आप? नहीं सर, एमपी से हूँ, खरगोन जिले से। अच्छा, खरगोन से है। हाँ, तो थैंक यू। पतंजलि का ले लीजिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, या जो भी अच्छा ब्रांड आपको पसंद आए, और उसको, उसका सेवन करिए। तो धीरे धीरे वो 1 महीने भर में हील हो जाएगा पूरा। ओमेगा 3 की कमी से वो हो रहा है। ओमेगा 3 मछली के तेल में भी होता है। ओमेगा 3 अलसी, सूरजमुखी, सफेद तिल सब में होता है। ओमेगा जो है वो अखरोट में भी होता है। तो मछली का तेल भी आपको कहीं भी जिम की दुकान होगी जहाँ प्रोटीन पाउडर ऑर्डर मिलते होंगे, वहां आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। या तो फिर मेरे को आप जो है प्रधान जी का नंबर ले लेना, मैं आपको दे दूंगा, फोन कर देना, तो उनके पास भी ओमेगा 3 है, वो वाला आप ले लेना, जो इम्पोर्टेड है, बेहद अच्छा और महंगा है, 3-4 हज़ार रुपये का आता है। वो भी बहुत अच्छा है। तो ओमेगा 3 की कमी से हो रहा है, बस इतना समझ लो, ओमेगा 3 जिस भी सोर्स से मिल जाए खाना चालू कर दो, है ना, तो ठीक हो थैंक जाएगा। यू दादा। ओके। मुकेश जी अनम्यूट करें। नर्मदे हर दादा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दादा मेरे को अपने सीनियर से कुछ मिल नहीं पा रहा है। जैसे मैं अपनी मशीन मंगाया था अगस्त 2025 में। मैं अपने भाई की मशीन लगाया हूँ 19 अक्टूबर 2025 में, दिवाली से 2-3 दिन पहले। मशीन आज तक नहीं है पहुंची है। अब वो अपने एड्रेस में मंगा लिए हैं कि कहाँ मंगा लिया। अभी मेरी 2 दिन पहले भी 26 फरवरी को एक मशीन लगी है। मैं वो 2 लाख रुपए पहले डाले थे, और 1,11,500 रुपए अभी 26 जनवरी, सॉरी हाँ 26 फरवरी को डाले हैं। मगर मेरे को क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि इनकी मशीन ऑर्डर लगी नहीं लगी, कि नहीं, क्या ये उमेश। आप एमपी से हो कि? जी एमपी से हूँ मैं, अमरकंटक के पास है। अच्छा। यहाँ से हूँ। उमेश्वर साहू और ये देवेंद्र साहू रायपुर धमतरी के हैं, इन्हीं की टीम से हूँ। ओके।
तो देखिए, पैसे का तो जो है कंपनी का खाता है, उसी में पैसा डालना चाहिए। अगर जी हाँ, आपने, कंपनी के खाते पे ही हाँ, पैसा डाले हैं सर। हाँ, कंपनी के खाते में पैसा डाले हैं तो उसका यूटीआर आपके पास होगा। तो जी आप कंपनी को अगर मेल लिखेंगे कि भाई, आपके पास उसका यूटीआर से कि भाई हमारा यूटीआर का क्या हुआ, किसी ने यूज तो नहीं कर लिया, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, तो कंपनी आपको उसकी जानकारी दे देगी। कस्टमर केयर का जो नंबर है, वो आपको जी नंबर जो है वो भी, आप एनर्जिक की साइट पे जाएंगे, energic.co.in, तो उस पे कस्टमर का नंबर आ जाता है ना, कस्टमर जी केयर का। तो कि भाई हमारे साथ कहीं कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, क्या हुआ है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई ये आपका मशीन नहीं आया, आईडी बना है नहीं बना है। तो ये सारी जी चीजें जी आपको इमीडिएट उस यूटीआर के बेसिस पे बता दी जाएंगी कि कहीं उसका कोई उपयोग हुआ है या उसका कोई दुरुपयोग हुआ है। तो उसके लिए आपको जो है उस कॉल सेंटर पे फोन करना पड़ेगा, या फिर उनको आप एक मेल डाल दें। तो अगर आपको मेल आईडी, वो भी वेबसाइट पे सब होता है, लेकिन आपको कहीं भी उस पर जरूरत पड़े तो आप हमारे फ़ोन नंबर से मांग सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं भाई, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ टेली करना है, क्रॉस चेक करना है, वो बड़ी आसानी से वो कंपनी को एक पत्र डाल के पता किया जा सकता है कि भाई थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो कंपनी आपको जानकारी दे देगी कि भाई ये आपका जो यूटीआर है, इसका आईडी लगा है नहीं लगा है, क्या है उसका, क्या प्रॉब्लम है उसमें जो हुआ, क्योंकि आप मशीन नहीं मिल रहा, यही आपकी समस्या है, मैं समझ गया। जी तो सर, मशीन नहीं, आईडी लग गई है, उनका पे आउट भी मेरे को आ गया है। अच्छा। मगर मशीन, मेरे भाई की जो मशीन लगी थी, आज 5 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए। 19 अक्टूबर को आरटीजीएस हुआ है हाँ, और भाई के नाम का पे आउट भी आ चुका है मेरे को। मशीन नहीं आया। मशीन अभी तक नहीं आया है। उनका कहना था कि जो हमारे अपलाइन है, उनका कहना था कि अभी मशीन नहीं है, और इसके बाद मशीन अभी तक कैसे नहीं आएगी इतने दिन। और अभी मैं जब 15 दिन, 1 महीने से बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि हम आपको, वो मशीन हम यूज कर लिए हैं, हम आपको 2,97,000 वाली देंगे। मगर अभी अभी भी नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी वहां स्टॉक नहीं है। अब 4-4, 5-5 महीने से स्टॉक नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 297 वाली तो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, वो तो बात उनकी सही है। और 297 वाली मशीन वो आपको कहाँ से देंगे, वो तो बनना ही बंद हो गई है। तो इसका मतलब आपका मामला कंपनी से जुड़ा हुआ मैं सर नहीं है। 277, 278, 500 रुपये डलवाया था भाई से। हाँ, तो 277 500 में तो जो मशीन वो तो कब की बंद हो गई है ना। ये सब लास्ट मंथ बंद हुई है वो, यस, जनवरी नहीं जनवरी सर, के मैं टाइम। अक्टूबर में डाला था, तो उसी के अगेंस्ट एक बार सर वाई के प्रधान सर का नंबर दे देते तो मैं उनसे भी डिस्कस करता, क्योंकि ये वहीं के हैं, वहीं के टीम के हैं, तो एक बार अपलाइन से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, वाई के प्रधान जी का नंबर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो है, फिर भी हम, आप लिख लो उनका नंबर जो जी है ना। क्या है कि ये आपके लोकल इश्यूज हैं, ये लोकल इश्यूज जो हैं आपके, देखो इसीलिए हम लोग अनम्यूट नहीं करते। हम ये अनम्यूट करते हैं तो ये नई नई चीज़ें, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप लोग इन सब चीज़ों के लिए, आपको वैसे है ना ऐसा हैंड रेस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब लिखिए नंबर आप, 9340 जी, 9340 845548, है ना। 5548। हाँ, अब अजय जैन जी भी अनम्यूट, अजय जैन जी, हाँ, अनम्यूट करें खुद को। अजय जैन जी आप अनम्यूट हैं, हाँ। सर प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम। ये जो गुप्ता जी हैं सर, ये मेरे ही टीम से हैं। और हम्म। इनका जो मशीन 4-5 महीना से जो मशीन आई हुई थी, शायद गुप्ता हम्म। जी से और उमेश्वर जी से ये लगातार ये दोनों बात करके ही वो मशीन को उमेश्वर जी इनसे मंगे थे, मेरी जानकारी में जो आया था। हम्म। 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 है ना, क्योंकि इन्होंने 3 मशीन शायद ऑर्डर किया है ना। हम्म। हम्म। और उसके बाद सडनली कंपनी इस मशीन को ना ब्रेक ब्रेक कर दी, है ना। और मैं कल भी राजू शर्मा इनके जो अपलाइन है उनसे भी मेरी बात हुआ, वो मेरे पास लगाए थे इस मैटर पे। तो हम्म। हाँ, हमने बात करके बोला कि उनका मशीन अभी जैसे आ जाएगी, चाहे वो पेटीलम मिले या डीएक्स मिले, है ना, जो मशीन हम्म। मिलेगा उनको ही इनको दे देंगे ऐसे करके। हम्म। तो तो मुकेश राजू जी, आप शर्मा अजय थे अजय इनके। जैन जी के संपर्क में रहिए। और जो जी है ना, इन लोगों से सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर वाई के प्रधान जी का नंबर आपने मांग ही लिया है, ठीक है। मुकेश जी कल अनम्यूट करें खुद को। कल गुप्ता सर, आप राजू राजू
जी सर। तो मुकेश जी, आप लोग आपस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में रहिए। आपको सारे नंबर दे दिए हैं, अजय जैन जी का नंबर होगा ही आपके पास। पर्सनल देख लीजिए कौन सा मशीन क्या आना है, जाना है, लेना है, देना है, जो भी सर है। क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेल करनी है क्या? मैं नहीं तो फिर मेल करवाऊं। अजय जैन जी से बात करिए। कंपनी इसमें जी। अब क्या करेगी, कंपनी तो मशीन भेज दिया है, तो कंपनी इन्हीं आप लोगों पे मुझे ना एक्शन सर लेगी। कॉल कर लीजिएगा, है ना, हम्म। गुप्ता सर। हाँ, जी जी सर, ठीक है सर। आप मुझसे बात कर लीजिएगा सर। जी सर। इनसे बात करिए, सॉर्ट आउट करिए मामला, ठीक है। ओके। इस फोरम पे हम जो है ये सारी चीजें तो नहीं करना है सब। अनीता मंडलोई जी से बात हो गई है, मनोहर लाल जी और राम जीवन जी, हाँ। चलो, दो तीन लोगों, मनोहर लाल जी कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो बताइए, शेयर करिए क्या है। मनोहर लाल जी, सर प्रणाम। थोड़ा सा तेजी से करें, नहीं तो क्या एक दो लोगों को ही ले पाएंगे, अब नहीं ले पाएंगे सर यार। पेट में गुड़गुड़ होता है और पेट साफ नहीं रहता। हाँ, तो अनार लीजिए दो, उसका दाने निकालिए, उसके छिलके जो हैं उनका वो पेस्टिसाइड होता है, तो छिलकों को 11:30 में डुबा के रखिए, 16 से 20 मिनट, उसके बाद छिलके जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो अनार का दाना और जो है उसमें छिलका डालिए, और उसमें 9:30 का पानी डालिए, उसका जूस बनाइए। थोड़ा छिलका फ्रिज में रहने दीजिए, वो अगले दिन काम आएगा। तो दो अनार दाने और एक अनार का छिलका, उसका जूस बनाइए 9:30 में, और घोंट के उसको पूरा छान के पी जाइए, तो ये गुड़गुड़ जो है हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। लास्ट राम जीवन जी। मैं बात करूं। राम जीवन जी मम्मी। फटाफट, टाइम थोड़ा कम है, या तो फिर कल आइए, जैसा भी है, क्योंकि क्या हमको अब निकलना है, हमारा बस छूट जाएगा। सर मेरे को दर्द होता है बहुत। सिर दर्द होता है तो आपके पास मशीन है क्या? हाँ मशीन है सर। हाँ। कैंगन पानी 9:30 का निकालिए, बाजार से कांच का बर्तन लेके आइए, और उसमें हाँ 9.5 pH का पानी लबालब भर दो। जब पानी उस कांच के जार से बाहर निकलने लगे, तब उसमें 2 से 3 एप्पल डाल दो, लाल वाले सेब, जिसको अपन सेव फल या सेब कहते हैं, एप्पल कहते हैं, लाल वाले जी 3 एप्पल डाल दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो। 40 मिनट बाद उसको खा जाओ। छिलका इलका नहीं निकालना है, 1 महीना करोगे तो सिर दर्द चला जाएगा, माइग्रेन होगा, सिर दर्द होगा, आधा सीसी दर्द होगा। तो 3 एप्पल रोज 1 महीने तक सुबह खाना है, 8 से 9 बजे के बीच में। 7 बजे रख हाँ देना पानी में भिगा के, 1 घंटे बाद खा लेना निकाल के, उनका कवर समेत खाना है, ठीक है। जी जी सर। ओके। आगे साइड पीछे साइड दो ही साइड दर्द हो रहा है। सिर में दर्द उससे चला जाएगा, 4-5 दिन एप्पल खाओ, चला जाएगा दर्द, है ना। सिर में नहीं, सीने में, पसुरिया में। पसूड़िया का दर्द भी उसी से चला जाएगा। अच्छा उसी से चला जाएगा। हाँ, उसी से चला जाएगा। प्लीज दादा नमस्ते। नमस्ते। किरण सोलंकी जी, हाथ प्लीज अनम्यूट करें, फिर हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। ठीक है दादा नमस्ते। जी दादा नमस्कार। नमस्कार। मेरे पिताजी को मतलब 1.5 साल पहले स्टेंट डले थे दादा, 3 स्टेंट। और अभी जैसे वो गए थे चेक करवाने, तो उनको डॉक्टर ने मतलब एक और वो बताया है। ब्लॉकेज। हाँ ब्लॉकेज, तो उसके लिए क्या करना चाहिए दादा? उनके यहाँ मशीन लगी है, मतलब 5-6 महीने हो गए हैं। नहीं, आप कहाँ से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, कहाँ से हाँ हो आप? सर मैं खरगोन से, और खरगोन से, और पन्नालाल वो चंपालाल सर की टीम से हूँ। हाँ, तो ये जो है ब्लॉकेज अगर हो गया है, तो ब्लॉकेज हो रहा है तो रोज इमली पानी लेना पड़ेगा। एक कांच की हाँ बोतल ले लेके रही आना हूँ। है, ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, आधा लीटर पानी आए उतनी ही बड़ी हो, और हाँ उसमें हाँ पूरा पानी भर दो आप। और उसमें इमली डाल दो, जो अपनी जो इमली आती है, जो कचौरी समोसे की चटनी में हम पकी हुई इमली यूज करते हैं, एक इमली डाल दो। और उसको हाँ अगले दिन उस इमली और उस पानी को मसल दो, और उस पानी को छान लो, और थोड़ा गर्म करके जो है जो है, आप आते हो क्या रोज मीटिंग में, कि आज हाँ से सर, प्रश्न मैं पूछने दादा आ गए? रोज आती हूँ। हाँ रोज आती हूँ। आप रोज आते हो कि? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये सब तो हम बता चुके हैं कि ब्लॉकेज जो होता है वो इमली पानी से खत्म हो जाता है नहीं ना। दादा, वो तो ले रहे हैं, रोज इमली पानी ले रहे हैं। हेलो।
तो ये इमली पानी पीना है, उसके बाद ब्लैक कॉफी पीना है, और उसके 1 घंटे बाद 3 एप्पल का नाश्ता करना है, और प्याज रोटी खानी है। दूध, दही, तेल, चिकनाई, घी और इन सब चीज़ों से, मांस, मछली, अंडा, इन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये ब्लॉकेज जो है गलने लगेगा, 3 महीने लगेंगे। और 7 बजे के पहले खाना खा लेना है। तो पहले इमली पानी, फिर काली कॉफी। काली कॉफी में भी दूध, शक्कर, गुड़, शहद कुछ नहीं डालना है। ऐसा अगर हाँ आप करेंगे, 3 एप्पल खाएंगे, उसके बाद प्याज कंपलसरी खाना है, 2 प्याज सुबह, 2 प्याज शाम के भोजन में, और उसका कचूमर सलाद बना लेना, उसमें चाहो तो मूली वूली ये वो सब डालना, और उससे रोटी खाना है। चने की सब्जी भी खा सकते हैं। चना भी जो है वो रात को गलाओ, अगले दिन बॉईल कर लो, और सिर्फ पानी में उसकी सब्जी बना सकते हैं। ये ऐसा जी अगर करोगे तो 3 महीने में ब्लॉकेज गल जाएगा। नहीं तो जी डॉक्टर। ये ब्लॉकेज नहीं गलेगा। स्टंट डलने के बाद ब्लॉकेज और तेजी से होता है, ये एक तो बड़ी परेशानी है स्टंट की। स्टंट डलने के बाद और तेजी से उसके आसपास सब वो जमा होने लगता है ना। दादा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, इस रिकॉर्डिंग में